हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय प्लेलिस्ट ऑफ जनरल एनाटमी। बीडी चौरासिया की हैंडबुक है जनरल एनाटमी की, और जो इस बुक का लेटेस्ट एडिशन है उसमें चैप्टर नंबर 11 जो कि जेनेटिक्स को डील करता है, इसकी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे। सो हेयर इज़ द वीडियो टू डील विद बीडी चौरासिया जनरल एनाटमी हैंडबुक चैप्टर नंबर 11 जेनेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, राइट? And as you know, BD Chaurasia starts with a generic quote or a famous saying, and here it is a saying by Thomas Lovejoy. नाम ही बड़ा मजे का है, Lovejoy. Genetic engineers don't make new genes; they rearrange the existing ones, and that's absolutely true. I mean, making new genes is not neither the target nor it is the matter of discussion, but the genetic engineers are very good at rearranging the existing genes. Therefore, it is very important to actually understand the basic genetic layout of your cell and obviously ultimately the whole body. और ये इसलिए भी ज़रूरी है स्टूडेंट्स के आज की तारीख में वी टॉक अ लॉट अबाउट पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। फॉर एग्जांपल, वी टॉक अ लॉट अबाउट प्रिसीजन मेडिसिन। यानी इसकी एक मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दूं कि जब हम कैंसर के पेशेंट्स को कीमोथेरेपी से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, सो अ कीमोथेरापेटिक ड्रग, से फॉर एग्जांपल एक्स, कैन वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर पेशेंट एंड सिमिलरली द सेम ड्रग can not work on the other patient just based on their polymorphism, the genetic differences they have. So हो सकता है कि ये ड्रग इसी एक पेशेंट पे काम कर रही हो बिकॉज इसमें कुछ पर्टिकुलर तरह की जीन्स मौजूद हों जिनसे बनने वाले जो प्रोटीन्स हैं वो इस ड्रग को प्रॉपरली मेटाबोलाइज कर सकते हैं एंड द ड्रग कैन परफॉर्म इट्स एक्शन। एंड इस दूसरे पेशेंट में, लेट्स कॉल दिस पेशेंट 1 एंड पेशेंट 2, सो पेशेंट 2 में उस पर्टिकुलर allele position पर there is a different polymorphism so that the drug is not metabolized, so that it does not transform into its active product and it is not performing its action. So one drug but performing its action in one patient and not the other. इसे हम कहते हैं personalized medicine कि this drug is very much personal only to patient number 1 because it's working only in this person, and this all depends upon what sort of genetic changes they have, what sort of allele they have. या दूसरी ज़बान में हम कहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर allelic पोजीशन पर इनकी क्या polymorphisms है। So ये सारे टर्म समझ में तब आएंगे, आपको पता ही तब पड़ेगा कि भाई जीन का मतलब क्या है, अलील का मतलब क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म में क्या बोल रहा हूँ, जब आप इस जनरल कॉन्सेप्ट के चैप्टर को डिटेल में स्टडी करेंगे। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। Genetics is the study of heredity, a process by which children inherit certain कैरेक्टरिस्टिक्स का दूसरा नाम ट्रेट है। सो इसका बेसिकली मतलब है हाइट ऑफ अ पर्सन, दैट इज वन कैरेक्टरिस्टिक, color of the eye, color of the hair, intelligence level. So these are all the traits a person inherit from their parents, right? पेरेंट्स से हम सिर्फ जायदाद इनहेरिट नहीं करते कि अब्बा का घर था तो वो 3 बच्चों में डिवाइड हो रहा है, इस तरह की चीज़ तो होती ही है, वो भी हेरिडिटरी प्रोसेस है, वो भी इनहेरिट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो इनहेरिटेंस की बात चल रही है, दैट बेसिकली मीन्स द ट्रेट्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी गेट फ्रॉम आवर पेरेंट्स। ऑब्वियसली, I mean, think about it. We have a father, biological father, and then we have a biological mother. Biological father has a set of genes, and these genes get into the sperm ultimately, and the biological mother has ovum, and when ovum and sperm they combine together, now we have a zygote, and zygote has obviously एक cell जिसमें 46 chromosomes हैं total. So 23 of the chromosomes are coming from father and 23 of the chromosomes are coming from mother to make a total number of 46. So इन 46 chromosomes में बहुत सारी ज़ाहिर genes होंगी और बहुत सारे हमारे traits होंगे, बहुत सारी characteristics होंगी, right? Hereditary processes जो हैं, they are controlled by genes as well as environmental factors. Now this is very important to understand. देखें, सिर्फ जेनेटिक कंट्रोल नहीं होता चीज़ों का, देयर इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस ऑफ द इन्वायरमेंट। ये भी हम आगे भी इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे और पूरी ही मेडिसिन में आप पढ़ेंगे इसको। जो फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ की एग्जांपल दी जाती है कि देयर आर सर्टेन जीन्स कि अगर ये पॉलीमॉर्फिज्म्स हैं, सो द पेशेंट इज प्रोन टू हैव डायबिटीज़, बट देन देयर आर ऑल्सो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। वो बंदा खाता क्या है, एक्सरसाइज कितनी करता है,
All these factors, they can contribute towards development of diabetes. So there are genetic factors of diseases as well as there are environmental factors, right? This is all very important discussion. Now, you must know that various environmental factors may cause anomalies in the chromosomes mothers aged particularly over 40 years. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि those females who are conceiving after the age of 40, there are chances, because they have lived for 40 years, they have been through a lot of environmental changes. So for example, this biological mother of somebody, say for example she is 50 plus and now she is conceiving for the first time. This person has lived a long life, 50 years, right? So बहुत सारी रेडिएशन, बहुत सारे केमिकल्स इसकी बॉडी को हिट किए होंगे, जिसकी वजह से ये पॉसिबिलिटी है कि जो ओवम बने उसमें कोई ना कोई जेनेटिक चेंजेस हो चुके हुए हों. Now these genetic changes will be inherited to the baby. Now mothers over 40, they have a great deal of transferring genetic aberration, and same can also be true for father, but more studied in mother. There can be viral diseases, there can be exposure to radiation during pregnancy. These are all the factors which can contribute to alteration in the genetics of any of the parents, father or mother, and this can then be transferred. अगर यहाँ पे parents में there is genetic alteration, particularly in the germ cells, देखें sperm को और ओवम को हम कहते हैं germ cells because they fuse together to make a zygote. So these are sex cells or germ cells, which is a more appropriate name. इनमें अगर कोई genetic alteration है, that will be transferred to the zygote, and hence इस zygote से जो ultimately baby develop होगा, उस baby में भी वो genetic changes transfer हो जाएंगे. This is called heredity. So we get healthy traits as well as disease traits, right? One needs to compare the stages of mitosis and meiosis of the cell before we study the genes. Now, this is a very important concept, very basic, pretty basic concept. Histology में हमने पढ़ भी रखा है बहुत डिटेल में. आपको पता है कि the cells of the body divide in two different ways. Number one is known as mitosis and the other one is known as meiosis. Now, in दोनों cell division में there are certain principal differences जो अभी हम discuss करेंगे, और फिर एक प्यारा सा chart भी बना हुआ है कि what is the difference between mitosis and meiosis. But before we study the chart, कुछ बहुत ही बेसिक बातें. सो आपकी बॉडी में देखें दो तरह के सेल्स हैं. सो यू आइदर हैव सोमैटिक सेल्स and the other category of cell I just told you about, those cells are the germ cells, right? Now germ cells are sperm and ovum. ओवम फीमेल में होगा ऑब्वियसली, स्पर्म मेल्स में होंगे. बाकी जितने भी सेल्स आपकी बॉडी में हैं, सो फॉर एग्जांपल आपकी स्किन के सेल्स, आपकी कहीं का भी सेल ले लो यार, हेयर फॉलिकल्स ले लो, आप अपनी इंटेस्टिनल एपिथेलियम ले लो, ब्लड सेल्स ले लो, स्पर्म और ओवम के अलावा जितने भी सेल आपकी बॉडी में हैं वो सारे के सारे सेल कौन से सेल हैं? सोमैटिक सेल्स. सो दैट्स अ वेरी सिंपल डिस्टिंग्विश करने का तरीका बिटवीन दी सोमैटिक एंड दी जर्म सेल्स. अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? उसका रीज़न ये है कि आपकी बॉडी में देयर आर मैनी सेल्स विच डिवाइड. देखिए कुछ सेल्स तो वो हैं जिन्होंने तय कर रखा है कि हम कभी डिवाइड ही नहीं होंगे. सो फॉर एग्जांपल देयर आर नर्व सेल्स, दे सेल्डम डिवाइड. बहुत मतलब कोई हल्की फुल्की इनमें होती हो रीजनरेशन, अदरवाइज दे आर वेरी टफ टाइप ऑफ सेल्स ना, तो ये इतना इजीली रीजनरेटिव नहीं. बट देन देयर आर सम cells in the body which continuously keep on dividing. So for example your bone marrow cells, right? आपके bone marrow cells हर वक्त डिवाइड होते रहते हैं. आपकी skin epithelium, आपकी intestinal epithelium, ये वो cells हैं which keep on dividing all the time. तो आपको अब ये पता होना चाहिए कि कौन से cells किस तरह डिवाइड होते हैं. स्पर्म की एग्जांपल ले लें. स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन द नंबर्स, मिलियंस में बनते हैं स्पर्म. इसी तरह ओवम है. आई मीन यू हैव लाइक इन फीमेल बॉडी देयर आर लाइक मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स. तो यहाँ भी सेल डिवीजन हो रही है. अब as a rule of thumb, what you have to remember is the fact कि जितने भी somatic cells of the body हैं, they divide by the process of mitosis. Okay, so all the somatic cells and the germ cells divide by the process of meiosis. तो ये एक general principle है. So अगर sperm के बारे में बोलूँ तो उनकी cell division कैसे हो रही है? Via through the process of meiosis. Ovum में भी, and then the rest of the cells they are dividing by mitosis. अच्छा, mitosis सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. देखिए mitosis में ये है कि एक सेल है, this is a cell. So for example इस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, हमारे हर सेल के न्यूक्लियस में भाई कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46. मैं सोमैटिक सेल्स की बात कर रहा हूँ. जो जर्म सेल्स हैं या जो सेक्स सेल्स हैं उनकी बात नहीं कर रहा, राइट? तो सोमैटिक सेल के एक सेल में देयर आर 46 क्रोमोसोम. नाउ व्हाट हैपेंस जब इस सेल को डिवाइड होना होता है? ऑब्वियसली अल्टीमेटली ये डिवाइड होगा दो सेल्स में, राइट? इसी को बोलते हैं ना सेल डिवीजन.
डिवीजन का मतलब है डिवाइड होना। सो माइटोसिस में होता ये है कि अ सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल, तो इसको हम पेरेंट सेल का नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड द पेरेंट सेल, एंड देन दीज आर कॉल्ड डॉटर सेल्स। तो ये सिंपल सी टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि पेरेंट सेल क्या है, डॉटर सेल क्या है। अच्छा, माइटोसिस में अब ये जरा गौर से सुनिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। माइटोसिस में हमेशा जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड होकर के जब डॉटर सेल बनाएगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिटेन रहते हैं, यानी इस सेल में भी 46 क्रोमोसोम होंगे और इसमें भी 46 होंगे। अब सवाल ये उठता है कि भाई पेरेंट सेल के पास तो थे ही 46 क्रोमोसोम, अब यहाँ 46 और 46 92 क्रोमोसोम कहाँ से आ गए? तो इसका जवाब ये है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, हम कौन सा प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं अभी? माइटोसिस का। सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस एक वक्त ये आता है कि जब सेल अपने जेनेटिक मटेरियल को डबल करता है। सो इट्स लाइक फोटो कॉपिंग, आप फोटो कॉपी कराते हैं ना, जीरोक्स कॉपी, आप एक किताब एक पेज किसी के पास लेके जाते हैं, शॉप वाले के पास को बोलते हैं यार इसको जरा जीरोक्स कर दो, तो आपके पास अब आइडेंटिकल 2 पेजेस हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर थ्रू डिफरेंट फेजेस, वो मैं फेजेस अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, थ्रू डिफरेंट फेजेस ये एक वक्त ऐसा आता है कि जब ये जेनेटिक मटेरियल जो है ना इस पेरेंट सेल के अंदर ही डबल हो चुका हुआ होता है भाई, 92 क्रोमोसोम्स बन गए। फिर ये 92 क्रोमोसोम्स डिवाइड हो जाते हैं, आदेश में चले जाते हैं, आदेश में चले जाते हैं। तो अल्टीमेटली पूरा ओवरऑल प्रोसेस क्या हो रहा है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में था वो रिटेन है डॉटर सेल्स में। ये बेसिक प्रिंसिपल है। सो माइटोसिस को समझने के लिए 3 बातें आपने याद रखनी है। मैं कलर चेंज करता हूं ताकि एम्फेसाइज अच्छा हो सके। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज नंबर 1 कि माइटोसिस हैपेंस इन योर सोमैटिक सेल्स, राइट? तो ये बात नंबर 1 आपको सबको याद होनी चाहिए हर वक्त। नंबर 2, माइटोसिस में यू डिवाइड द सेल्स इनटू 2 डॉटर सेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 डॉटर सेल बनते हैं। एंड नंबर 3, देयर इज सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज दे वर इन द पेरेंट सेल। सो डॉटर सेल में वही नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा 46 जो पेरेंट में था, बिकॉज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस दे डिवाइड, ओके? सो मल्टीप्लाई, सॉरी नॉट डिवाइड, दे मल्टीप्लाई फर्स्ट, 46 मल्टीप्लाइड बाय 2 becomes 92, and then the number 92 chromosome 46 उधर चले गए, 46 इधर चले गए। So that's how mitosis happen. So जो 2 सेल बनते हैं they are 100% identical, बिल्कुल एक जैसे हैं, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं और ये इसके जैसे भी हैं, सो पेरेंट जैसे भी, सेम थिंग, राइट? तो ये है माइटोसिस का फंडा। अब जरा माइटोसिस की डायग्राम वायग्राम देख लेते हैं, फिर मैं आपको मियोसिस भी समझाता हूँ, राइट? सो सपोज अ सेल डिसाइड्स टू डू माइटोसिस, राइट? सो माइटोसिस का जो पहला फेज है विच इज कॉल्ड प्रोफेज, इसमें द न्यूक्लियर मटेरियल स्टार्ट्स बिल्डिंग अप, ये अपने आप को डबल करना शुरू करता है। एंड नाउ हियर यू कैन सी कि प्रोमेटाफेज में सो देयर आर डिफरेंट, बेसिकली 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इन 4 फेजेस के बीच में कुछ सब फेजेस भी होते हैं, बट ये 4 फेजेस आपको क्लियरली पता होने चाहिए। देयर इज प्रोफेज, देयर इज मेटाफेज, देयर इज एनाफेज एंड देन देयर इज टीलोफेज। अब बेसिकली हो ये रहा है कि सपोज ये सेल है, राइट? इस सेल के अंदर ये जेनेटिक मटीरियल है। अच्छा, मैं इसमें एक क्रोमोसोम पे भी डिस्कस करता हूँ, सेम अप्लाइज टू ऑल द 46 क्रोमोसोम। सपोज इस सेल के पास एक क्रोमोसोम है, राइट? तो इसके पास ये एक क्रोमोसोम है। अब माइटोसिस में ये जा रहा है, माइटोसिस में जा रहा है तो मैंने क्या बताया, पहले ये अपने क्रोमोसोमल मटेरियल को डबल करेगा, सो इट मल्टीप्लाइज लाइक दिस। सो अब ये बेसिकली हो रहा है कि एक स्ट्रैंड ऑफ क्रोमोसोम ये रहा, दूसरा स्ट्रैंड ऑफ क्रोमोसोम इसका ये रहा, राइट? और दे आर जॉइंड टुगेदर, अभी जुड़े हुए हैं आपस में। दिस इज व्हाट हैपेंस इन प्रोफेज। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट फेज आता है ना, मेटाफेज, उसमें ये होता है कि ये जो क्रोमोसोम ने अपने आप को डबल कर लिया है, 2 थ्रेड्स ऑफ क्रोमोसोम बना लिए, नाउ दे आर कॉल्ड क्रोमैटिड्स, दे अलाइन इन द मिडल ऑफ द सेल। इस तरह से ये आ जाते हैं और देयर आर सम ऑर्गेनेल्स विच आर कॉल्ड सेंट्रोमियर, इनमें से स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं और स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो रहे होते हैं टू दी क्रोमैटिड्स। अब दिस फेज वेयर दी क्रोमैटिड्स जो कि ऑलरेडी डबल हो चुके हैं क्रोमोसोम, दे अलाइन देमसेल्फ इन द मिडल। और नेक्स्ट फेज में आप देखेंगे क्या होगा कि इधर से ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं स्पाइडरमैन के फाइबर्स की तरह इस क्रोमैटिड को ऊपर यहाँ खींचेंगे और ये नीचे वाले जो स्पाइडरमैन वाले फाइबर्स हैं ये इस क्रोमैटिड को इस डायरेक्शन में खींचेंगे। तो पिक्चर कुछ यूँ बनेगी कि भाई ये सेंट्रोमेयर अपनी जगह पर है, ये रहा स्पिंडल फाइबर और एक क्रोमैटिड ऊपर जा रहा है और दूसरा जो क्रोमैटिड है वो ऐसे नीचे आ रहा है। अब आप देखो जरा कितनी ब्यूटीफुल सिस्टम है कि इनिशियली वी हैड अ सेल, यानी शुरू में सबसे इस तरह का सेल होगा ना जिसमें एक क्रोमोसोम था, उस एक क्रोमोसोम ने अपने आप को 2 क्रोमैटिड में कन्वर्ट किया, ये 2 क्रोमैटिड सेंटर में अलाइन हुए, फिर सेपरेट हो गए, खिंच के एक दूसरे से, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है। अब ये भी क्रोमोसोम बन गया, ये भी क्रोमोसोम बन गया है। नाउ द सेल इज रेडी टू गेट डिवाइडेड। अब ये सेल में इस तरह से डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, देखें, और यहाँ एक न्यूक्लियस बनना शुरू हो जाता है जिसमें एक क्रोमैटिड आ गया, यहाँ एक न्यूक्लियस बनना शुरू हो जाता है जिसमें एक क्रोमैटिड आ गया, एंड फाइनल स्टेप
मतलब ये होगा कि ऊपर वाला सेल पूरा अलग, इसमें एक क्रोमैटिड, और नीचे वाला सेल पूरा अलग, इसमें एक क्रोमैटिड। तो देखो ओवरऑल हुआ क्या, ओवरऑल वही होगा जो मैंने आपको इनिशियल प्रिंसिपल बताया था माइटोसिस का, कि एक सेल से कितने सेल बनेंगे बॉस, 2 सेल बनेंगे। और दोनों, अब पहले तो ये देखो यहाँ पे ये प्रिंसिपल नंबर 1 जो है वो हो रहा है फॉलो कि नहीं हो रहा है। एक सेल से 2 सेल बन रहे हैं, यस 2 सेल बन रहे हैं। क्या इन दोनों सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, इसमें भी एक क्रोमोसोम है, इसमें भी एक क्रोमोसोम है। क्या इन दोनों सेल के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल जैसे हैं, ये है ना भाई पेरेंट सेल इधर, तो पेरेंट सेल में एक ही था ना क्रोमोसोम, ये वाला पेरेंट सेल है, तो यहाँ पे भी एक एक है। तो यस, ऑल द रूल्स ऑफ माइटोसिस आर फॉलोड। अब इन स्टेजेस को नाम देते हैं। सो ये तो पेरेंट सेल है, इस फेज को बोलते हैं प्रोफेज। इस फेज को जिसमें क्रोमैटिड सेंटर में आ जाते हैं, दिस इज कॉल्ड मेटाफेज। मेटा का मतलब भी होता है बीच में। और जब ये क्रोमैटिड्स क्रोमोसोम की तरह एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, दिस इज कॉल्ड एनाफेज। और उसके बाद जब ये बिल्कुल अलग अलग न्यूक्लियस बनना शुरू हो जाते हैं, दिस इज कॉल्ड टीलोफेज, राइट। और फिर ये 2 सेल बन गए, सेल डिवाइड हो गए, दीज आर कॉल्ड डॉटर सेल्स। अब इस डायग्राम को देखो, समझ में आएगा। प्रोफेज मटेरियल डबल हो रहा है, और मेटाफेज में ये सेंटर में आ गया, देख लो स्पिंडल फाइबर्स। उसके बाद ये जो क्रोमैटिड थे ये अलग अलग हो गए, 4 ऊपर जाना शुरू हो गए, 4। इस डायग्राम में 4 क्रोमोसोम्स की बात हो रही, मैंने एक क्रोमोसोम की बात की थी। रियल में 46 क्रोमोसोम डबल होते हैं, और 46 क्रोमोसोम से कितने क्रोमैटिड्स और क्रोमोसोम बन जाते हैं बीच में, 92। फिर वो डिवाइड होते हैं 46 और 46 में। सो जाहिर है अब डायग्राम में अगर 46 बनाएंगे तो कितना मुश्किल होगा। मैंने तो और आसान किया अपनी जिंदगी को, एक क्रोमोसोम से समझाया है। फिर जब ये क्रोमोसोम्स कोने पर पहुंच जाते हैं और यहाँ न्यूक्लियस बनना शुरू हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड टीलोफेज, एंड देन यू हैव 2 डॉटर सेल्स। सो भाई 3 बातें याद रखनी है माइटोसिस में। माइटोसिस सोमैटिक सेल्स में होता है। माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स बनते हैं जिनमें क्रोमोसोम नंबर आपस में भी एक जैसे होते हैं और पेरेंट सेल जैसे भी होती हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बार बार वीडियो को अगर देखना पड़े ना तो इट्स वर्थ वॉचिंग। अच्छा, मियोसिस की कहानी थोड़ी अलग है। मियोसिस की डिटेल्स में आपको मज़ा आएगा सुन के और ये अल्टीमेटली समझ में भी आएगा कि नेचर ने ऐसा सिस्टम रखा हुआ ही क्यों है कि अब कहीं माइटोसिस हो रहा है लेकिन सेक्स सेल्स में मियोसिस हो रहा है। तो अभी उसकी बात करते हैं। मियोसिस के, जैसे मैंने आपको माइटोसिस के जनरल प्रिंसिपल समझाया, लेट्स टॉक अबाउट द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मियोसिस। अब पहला प्रिंसिपल तो मियोसिस का ये है कि उसमें 2 सेल डिविजन्स होती हैं, लेकिन हम उसी फॉर्मेट पे करते हैं जिस फॉर्मेट पे मैंने आपको माइटोसिस कराया है। सो पहला रूल माइटोसिस में ये था कि वो सोमैटिक सेल्स में होता है। मियोसिस का जो सेल डिवीजन है, इट हैपेंस इन जर्म सेल्स, राइट। अच्छा, माइटोसिस का नेक्स्ट प्रिंसिपल जो मैंने आपसे कहा था याद रखना है कि देयर आर 2 डॉटर सेल्स विच आर प्रोड्यूस। मियोसिस में 2 के बजाय देयर आर 4 डॉटर सेल्स विच आर प्रोड्यूस। सो रूल नंबर 1, इट हैपेंस इन जर्म सेल्स। रूल नंबर 2, देयर आर 4 डॉटर सेल्स। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट रूल नंबर 3, जिसमें मैंने ये बात की थी कि माइटोसिस में जो डॉटर सेल्स बनते हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट ऑफ द पेरेंट सेल। लेकिन मियोसिस में ऐसा नहीं है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम हाफ, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व द जेनेटिक्स ऑफ एनी स्पीशीज। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप ह्यूमन बींग्स की बात करें, इस पॉइंट को गौर से समझिएगा। देखिए ह्यूमन बींग्स में दिस इज अ ह्यूमन बींग, राइट, male for example, and that's a female. Now male की हर सेल में, in every somatic cell we have what we have 46 number of chromosomes in each cell. इसी तरह फीमेल्स में भी, मैं somatic cells की बात कर रहा हूँ। अब जरा एक पल को अज्यूम करें कि अगर जर्म सेल्स में भी 46 ही क्रोमोसोम्स होते तो what would have happened, कि जब स्पर्म बनता तो स्पर्म में 46 क्रोमोसोम होते, ओवम में 46 क्रोमोसोम होते, जो जाइगोट बनता उसमें क्रोमोसोम कितने हो जाते, 92। और इस जाइगोट से जो ह्यूमन बीइंग बनता, इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग एज कंपेयर टू दी पेरेंट्स। तो जनरेशन कंजर्व नहीं रहती, स्पीशी कंजर्व नहीं रहती। स्पीशी को कंजर्व रखने के लिए ज़रूरी है कि जो डॉटर ऑफ स्प्रिंग बने उसमें भी हर सेल में, मैं अगेन सोमैटिक सेल्स की बात कर रहा हूँ, हर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 ही रहने चाहिए। अब ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 रहने का एक ही तरीका है कि स्पर्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम का कोई ऐसा डिवीजन हो जिसमें हाफ हो जाए, यानी स्पर्म शुड कंटेन 23 क्रोमोसोम, ओवम शुड कंटेन 23 क्रोमोसोम, ताकि जब ये दोनों सेल्स स्पर्म एंड ओवम आपस में कंबाइन हो तो वी रीच बैक टू द नंबर ऑफ 46, दोबारा 46 क्रोमोसोम हमें मिल जाए। तो इस तरह हमारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्पीशी टू स्पीशी कंजर्व रहते हैं। वरना सोचें ना कि स्पर्म में अगर 46 और 46 होते तो अगली जनरेशन में 92, अब 92 वाला स्पर्म बनता और 92 वाला कहीं से ओवम आता तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो बढ़ते चले जाते, जिसका मतलब ये है कि स्पीशी सेम नहीं रहती, स्पीशी बहुत तेजी से चेंज हो जाती। लेकिन ऐसा होता नहीं है।
Every human in somatic cells have fixed number of chromosomes, and that is also true for any other generation. So plants में भी ऐसे ही है, बाकी species में भी ऐसे ही है कि number of chromosome जो parents में होते हैं वही conserve रहते हैं in the offspring, right? Because of the beauty of the process of meiosis. So meiosis nature ने रखा इसीलिए है कि जो हमारे germ cells हैं उनमें एक ऐसा mechanism चाहिए जिसमें number of chromosome half हो जाए. Number of chromosome half होना स्पीशी को कंजर्व करने के लिए जरूरी है. अब ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होता कैसे है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ ऐसे होता है कि लेट्स बिगिन विद एन एग्जांपल ऑफ अ सेल. सपोज ये एक ऐसा सेल है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि देयर आर टू क्रोमोसोम्स, राइट? एक क्रोमोसोम ये रहा, एक क्रोमोसोम ये रहा. अच्छा, ये सेल आगे चल के स्पर्म बनाएगा. सो दिस इज अ प्रीकर्सर ऑफ स्पर्म, राइट? सो दैट्स अ प्रोजेनिटर सेल फॉर स्पर्म या ओवम प्रोडक्शन, क्योंकि इनमें मियोसिस होती है. सो ये एक पेरेंट सेल है जिसने स्पर्म या ओवम बनाना है. अगर मेल है तो स्पर्म बनाएगा, फीमेल है तो ओवम बनाएगा. और इसमें मैं एज एन एग्जांपल बता रहा हूँ कि देयर आर टू क्रोमोसोम. सो व्हाट हैपेंस कि न्यूक्लियस में, अब आई एम ओनली गोइंग टू ड्रॉ न्यूक्लियस, सो दिस इज ऑल न्यूक्लियस, राइट? सेल इसके बाहर होगा. न्यूक्लियस में व्हाट हैपेंस कि हर क्रोमोसोम बिल्कुल माइटोसिस की तरह डबल हो जाता है, अपने आप को डबल कर देता है. सो दिस इज व्हाट वी कॉल क्रोमैटिड फॉर्मेशन. ये न्यूक्लियस हम बना रहे हैं, राइट? ये सेल है पूरा. अब देखें, माइटोसिस में भी तो यही हुआ था कि क्रोमैटिड बन गए थे. लेकिन अब यहाँ एक मजे की चीज और होती है. होता ये है कि ये जो क्रोमैटिड्स बने हैं ये आपस में इतने करीब आ जाते हैं कि एक दूसरे से अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं. यानी अगर मैं आपको इस तरह से बताऊं कि सपोज एक जीन इधर है, उसकी सिमिलर जीन किसी और कलर में हम इधर बना देते हैं दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर. सो दीज होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स हैं इनमें देयर इज अ जेनेटिक एक्सचेंज. तो ये रेड डॉट हो सकता है इधर आ जाए, येलो डॉट उधर चला जाए. थिंग्स like these happen, you know, and this is very important, and this is how we generate diversity. So genetic material जो है वो इस तरह से क्रिस क्रॉस होता है in the germ cells, और ये प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही डिफरेंट है माइटोसिस से. माइटोसिस में ये नहीं होता, राइट? सो देयर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल. एंड देन व्हाट हैपेंस, अगला स्टेप बड़ा इंटरेस्टिंग है. अगले स्टेप में अगर आपको माइटोसिस में याद हो तो क्रोमैटिड्स अलग अलग हो जाते थे. अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है. मैं न्यूक्लियस बना रहा हूँ, इस न्यूक्लियस में एक क्रोमैटिड का पेयर ये रहा, दूसरा क्रोमैटिड का पेयर ये रहा. सो ये एक स्ट्रैंड दूसरा स्ट्रैंड, राइट? अच्छा, ये स्पिंडल फाइबर से इस तरह अटैच होते हैं कि क्रोमैटिड्स स्प्लिट नहीं होते. देन दिस इज व्हाट हैपेंस इफ दिस इज द सेल. एंड आप देखें, एक क्रोमैटिड का पेयर ऊपर की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा और एक क्रोमैटिड का पेयर नीचे की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा. तो अब हमारे पास जो दो सेल बनेंगे उनमें जो न्यूक्लियस होगा उसमें नाउ वी हैव क्रोमैटिड्स इंस्टेड ऑफ क्रोमोसोम. सो नाउ दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ मियोसिस. इसको हम कहते हैं फर्स्ट मियोरिक डिवीजन. तो देखिए जरा, फर्स्ट मियोरिक डिवीजन में क्या हुआ. फर्स्ट मियोरिक डिवीजन में जो पेरेंट सेल है वो दो डॉटर सेल में डिवाइड हुआ है, और इन दो डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स नहीं हैं बल्कि क्रोमैटिड्स हैं, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये क्रोमैटिड्स जो है, कुछ मटेरियल इसका इधर आ गया, कुछ इसका उधर चला गया, तो देयर हैज बीन क्रॉसिंग ओवर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल. लेकिन दो डॉटर सेल बने, मियोसिस अभी कंप्लीट नहीं हुआ. दिस इज फर्स्ट मियोरिक डिवीजन. नाउ व्हाट हैपेंस कि अब फर्दर जेनेटिक मटेरियल कोई डुप्लीकेट नहीं होता. Each cell simply then divides into, अब न्यूक्लियस में ऐसे होता है कि ये जो क्रोमैटिड्स हैं, ये क्रोमैटिड्स एक डायरेक्शन में एक जाना शुरू हो जाता है. अब क्रोमैटिड सेपरेट हुए, ये दूसरा दूसरी डायरेक्शन में, तो ये एक सेल के अंदर हो रहा है. इसी तरह दूसरे सेल में होगा कि इसका जो एक क्रोमैटिड है वो ऊपर मूव करना स्टार्ट कर देगा, एक क्रोमैटिड नीचे मूव करना स्टार्ट कर देगा. एज ए रिजल्ट इस सेल से हमारे पास एक न्यूक्लियस ऐसे बनेगा जिसमें एक क्रोमोसोम होगा, दूसरा न्यूक्लियस भी बनेगा जिसमें दूसरा क्रोमोसोम होगा. ना ऑब्वियसली ये पूरे सेल्स होंगे, सिर्फ न्यूक्लियस नहीं होंगे. सो व्हाट इज हैपनिंग कि इस एक सेल से जिसमें दो क्रोमैटिड्स थे, अब दो सेल और बन गए हैं जिसमें एक एक क्रोमोसोम है. ये अलग होकर सेपरेट होकर इस न्यूक्लियस में आ गया, ये सेपरेट होकर इस न्यूक्लियस में आ गया. सिमिलरली यहां से भी आपके पास इसी तरह दो सेल बनेंगे जिनमें अपना अपना न्यूक्लियस होगा और एक एक क्रोमोसोम होगा. अब हो क्या रहा है इस प्रोसेस को, जिसमें इन दो सेल से फर्दर दो सेल बन रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सेकंड मियोरिक डिवीजन. अब फर्स्ट मियोरिक डिवीजन में दो सेल बने और सेकंड मियोरिक डिवीजन में नाउ वी आर गेटिंग 4 सेल्स. तो मियोसिस की पहली शर्त पूरी हो गई. पहली शर्त क्या थी मियोसिस की? माइटोसिस में 2 सेल बनते थे, यहाँ पे 4 सेल बन रहे हैं. ऑब्वियसली पहली शर्त तो ये थी कि माइटोसिस सोमैटिक सेल्स में होगा और मियोसिस जर्म सेल में होगा. और अब आपको डिटेल से पता है कि जर्म सेल में मियोसिस क्यों होता है, ताकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होके फिर जब स्पर्म और ओवम आपस में मिले, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो, तो
दो क्रोमोसोम का जो नंबर है वो कंजर्व रहे, राइट। फिर सेकंड कंडीशन ये थी कि माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, लेकिन मियोसिस में कितने बनते हैं? 4। अब आप बताओ मुझे 4 सेल बन गए कि नहीं बन गए? द डायग्राम दैट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड, नाउ वी हैव गॉट 4 cells, 1 2 3 and 4, एंड व्हाट वाज द फाइनल सिनेरियो? फाइनल सिनेरियो ये था कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं पेरेंट सेल की तरह माइटोसिस में, लेकिन हाफ हो जाते हैं मियोसिस में। नाउ लुक एट द diagram here. Now we have got 4 daughter cells. हर एक में कितने क्रोमोसोम है बॉस? चारों में एक एक क्रोमोसोम है, एक 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 और एक। पेरेंट सेल से कंपेयर करो, पेरेंट सेल में कितने क्रोमोसोम थे? 2 क्रोमोसोम थे। देयर यू गो, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम गॉन हाफ, 2 से 1 हो गया। सो ऐसी सेल डिवीजन को जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट के मुकाबले में हाफ हो जाएं, दिस इज कॉल्ड मियोसिस। मियोसिस में जेनेटिक एक्सचेंज हो रहा है, मियोसिस सिर्फ जर्म सेल्स में होगा। सो ये है माइटोसिस और मियोसिस की डिटेल्स। अब जो टेबल है, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट, लेट्स गो थ्रू दिस टेबल। देयर आर सम क्रिटिकल डिफरेंसेस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस जो कि आपको बिल्कुल क्लियरली पता होने चाहिए। सो द कंपैरिजन बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, माइटोसिस में व्हाट हैपेंस इन प्रोफेज कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं दे रिमेन सेपरेट। इसका मतलब ये है कि उनमें कोई जेनेटिक एक्सचेंज नहीं होता। जो जेनेटिक क्रोमोसोमल एक्सचेंज है, जो मैंने आपको डिटेल में यहाँ समझाया था कि द मटेरियल्स एक्सचेंज डिफरेंट कलर्स के साथ, इसे हम कहते हैं कियाज्मा फॉर्मेशन। सो देयर इज नो कियाज्मा फॉर्मेशन इन माइटोसिस, देयर इज कियाज्मा फॉर्मेशन इन मियोसिस। देयर इज नो क्रॉसिंग ओवर इन माइटोसिस, देयर इज क्रॉसिंग ओवर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, राइट। अच्छा, मेटाफेज में क्या होगा कि जो क्रोमैटिड्स हैं दे लाइन अप इन द इक्वेटर एंड सेम व्हाट हैपेंस हियर, लेकिन डिफरेंस है। माइटोसिस में जो स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैचमेंट होती है वो इस तरह होती है कि क्रोमैटिड सेपरेट होके डिवाइड होके ऊपर और नीचे की डायरेक्शन में, दिस इज व्हाट हैपेंस इन माइटोसिस। मियोसिस में ऐसा नहीं है। मियोसिस में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में एक क्रोमैटिड का पेयर ऊपर मूव करेगा, दूसरा जो क्रोमैटिड का पेयर है बॉस वो नीचे मूव करेगा, तो पूरा पूरा क्रोमैटिड का पेयर मूव करता है। एंड देन एनाफेज में, माइटोसिस में सेंट्रोमेयर डिवाइड हो जाता है, इसीलिए क्रोमैटिड सेपरेट क्रोमोसोम बना के ऊपर और नीचे मूव करते हैं एंड दे आर वेरी मच आइडेंटिकल। जबकि मियोसिस में ऐसा नहीं है, देयर इज नो डिवीजन ऑफ द सेंट्रोमेयर, पूरा क्रोमैटिड का पेयर मूव करता है एंड ऑब्वियसली यू नो दैट देयर इज जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज, राइट। और टीलोफेज में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन माइटोसिस, जबकि मियोसिस में आपको पता है क्रॉसिंग ओवर के बाद फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, देन सेकंड मियोटिक डिवीजन, एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देन बिकम अल्टीमेटली half the number of chromosomes as compared to the parent. Mitosis में you get 2 daughter cells, meiosis में you get 4 daughter cells, right? अच्छा, अब ये जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 रहता है माइटोसिस में, पेरेंट सेल जैसा कि पेरेंट सेल में भी 46 और जो 2 डॉटर सेल्स बने उनमें भी 46, इस नंबर को हम नाम देते हैं डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, बिकॉज हमारी बॉडी में सारे सोमैटिक सेल्स में ये जो 46 क्रोमोसोम है, इसमें 23 ऑब्वियसली हमारे फादर से आए हैं और 23 हमारी मदर से आए हैं। दिस नंबर इज कॉल्ड डिप्लॉयड, या इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2n। जबकि स्पर्म में जाहिर क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है 23, तो इसको हम कहते हैं हैप्लॉइड, या ओवम में भी क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है, इसको भी हम हैप्लॉइड कहते हैं। सो what we are getting in mitosis में at the end of the day you are getting diploid cells, जबकि meiosis में you are getting haploid cells at the end of the day. So initially first meiotic division में तो आपको diploid cells ही मिलते हैं, but then you get haploid cells, half number of chromosomes, okay? So this is all very 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 important gamete formation के लिए meiosis है। I hope that you understand this concept. अब इस concept में एक complexity add करूं, सुने जरा। सपोज ये एक सेल है जो कि पेरेंट सेल है फॉर मेकिंग गैमेट, राइट। और जाहिर है अगर ये पेरेंट सेल है फॉर मेकिंग गैमेट तो इसमें कौन सा सेल डिवीजन होगा, माइटोसिस या मियोसिस? ऑब्वियसली इसमें मियोसिस होना चाहिए, राइट। अब ये मियोसिस होता है फ्रॉम द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इट मेक्स 4 cells and these 4 cells all would be haploid represented by n, half number of chromosomes. अब अगर इस सेल को अपने आप को डिवाइड करना है, it will divide by the process of mitosis to keep the number of chromosomes same. अब ये माइटोसिस करेगा, यानी अगर कोई ऐसा जर्म सेल ही की लीनिएज का सेल है जिसने अपना नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रखना है, सो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रखने के लिए कौन सा सेल डिवीजन होता है गाइस? माइटोसिस। तो ये आपको बात याद रखनी है, ठीक है, कि इवन जर्म सेल्स के भी कुछ लीनिएज के जो सेल्स हैं, अगर देखें पर्पस देखना पड़ेगा, अगर पर्पस है नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ करना देन मियोसिस, अगर पर्पस है नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रखना देन माइटोसिस, ओके
Right. So this was all very interesting discussion, and I would say very busy first 2 pages of chapter number 11. And I'm fine. इसमें जितना टाइम मुझे लगेगा मैं लगाऊंगा, बिकॉज स्टूडेंट्स बार बार मुझे कह रहे हैं कि सर ये जो जेनेटिक्स वाला चैप्टर है ये हमें काफ़ी मुश्किल लग रहा है. सो डोंट वरी, कोई मुश्किल नहीं लगने देंगे आपको, और इसको जितना आसान करके समझा सका मैं, आई विल स्पेंड एज मच time as I have to make it very clear for you. Right? Okay. Now let's discuss the concept of genes. अब gene है क्या? देखिए gene है the functional unit of your DNA, the deoxyribonucleic acid. It's the basic unit of heredity in the living organism, and all living organisms depend on genes. Genes hold the information to build and maintain an organism's cell and pass the genetic traits. So basic simple concept ये है कि आपका ये सेल है, उस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर ये थ्रेड लाइक मटेरियल है क्रोमोसोम. क्रोमोसोम जो है इसको अगर स्ट्रेच करें तो ये जिस केमिकल का बना हुआ है उस केमिकल का नाम है डीएनए. अब इस डीएनए में सीक्वेंसेस है ना नाइट्रोजनस बेसिस की, एडेनिन है, फिर गावानिन है, फिर थायमिन, इस तरह सीक्वेंस. तो इन सीक्वेंसेस के पीस को, एक पीस जो किसी बायोलॉजिकल फंक्शन में इन्वॉल्व है उसको हम नाम देते हैं जीन. अब होता यह है कि आपकी बॉडी में जो डीएनए है वो डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइडेड हो, जैसे आपका घर है. सो घर में डिफरेंट कमरे होते हैं ना, ऐसे बिल्कुल डीएनए इज अ बिगर पिक्चर, और पूरा क्रोमोसोम डीएनए से मिलकर बना है. उसके अंदर जो स्मॉलर यूनिट्स हैं उनका नाम है जीन. जीन कन्वर्ट होता है आरएनए में बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से बनती है आपकी बॉडी में प्रोटीन, और प्रोटीन आपकी बॉडी में सारे फंक्शंस करते हैं. सो बेसिकली आपका जो भी बॉडी का फंक्शन है, बोन्स प्रोटीन से बनी है, मसल प्रोटीन से बना है, एंजाइम सारे प्रोटीन होते हैं, एल्ब्यूमिन प्रोटीन है. सो प्रोटीन का सारा गेम है, राइट. सारे रिसेप्टर्स जितने सेल्स पर हैं वो सारे प्रोटीन्स हैं. सो ऑल द प्रोटीन्स परफॉर्म द बेसिक ग्राउंड वर्क. सारा बॉडी में जो फंक्शन है वो प्रोटीन ने करना है. प्रोटीन अल्टीमेटली बनता किससे? डीएनए से, इन स्टेप्स के थ्रू. सो जीन बेसिकली कंट्रोल करती है आपकी बॉडी के तमाम फंक्शंस को. सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द जीन्स? दे डिसाइड कि आपका ट्रेट क्या क्या होंगे, यानी कलर ऑफ द स्किन, इंटेलिजेंस, दिस इज ऑल डिपेंडेंट ऑन योर जीन्स. Genes undergo help in the process of replication. जब सेल डिवाइड होना होता है, सो इट्स द ट्रिगर फ्रॉम द जीन्स. Genes can also undergo mutation because of ultraviolet radiation, because of chemicals, because of so many other radiations. यानी जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाएगा, यानी AGT की जगह G चेंज हो जाएगा किसी और सीक्वेंस से. अब एक दफ़ा जीन का सीक्वेंस चेंज हुआ तो ज़ाहिर आरएनए का भी सीक्वेंस चेंज होगा, और जो प्रोटीन बननी चाहिए थी अब वो प्रोटीन नहीं बनेगी, ऑल्टर्ड प्रोटीन बनेगी. सो इसे हम म्यूटेशन कहते हैं. दिस इज नोन एज म्यूटेशन. Then there are a group of genes called homeobox genes. They are very important for normal development. So development process affected होगा अगर homeobox genes affected हो. So genes basically कोई भी affect होगी तो वो function affect होगा बॉस. They maintain the genetic specificity of an individual. ज़ाहिर है हर इंडिविजुअल, ह्यूमंस की अगर हम बात करें, डिफरेंट स्पीशी है ना, हम एक स्पीशी हैं ह्यूमन, होमो सैपियंस. सो इसी तरह और बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, सबके अपने अपने क्रोमोसोम नंबर हैं, सबकी अपनी अपनी जीन्स हैं, उसके हिसाब से उनके अपने अपने ट्रेट्स हैं. दे प्ले की रोल इन ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स. हम ये बात कई दफ़ा कर चुके हैं कि जीन्स ही के थ्रू हमारी सारे ट्रेट्स डेवलप होते हैं, एंड दे सिंथेसाइज वेरियस प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स. ये भी मैं आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा चुका हूँ डिटेल में कि जीन्स से, ऑब्वियसली जीन्स का मतलब है डीएनए की सीक्वेंस, उससे आरएनए बनता है, और आरएनए से प्रोटीन्स बनती है, और आपकी बॉडी का सारा जो काम करने का बेसिक स्ट्रक्चरल डिटेल्स हैं वो प्रोटीन्स ही हैं यार. सारा काम प्रोटीन करती हैं, पीछे वो कंट्रोल हो रहा होता है डीएनए की सीक्वेंस से, राइट. साइट्स ऑफ जीन्स. each gene occupies a specific locus on the chromosome. So होता ये है कि से फॉर एग्जांपल एक प्रोटीन है, प्रोटीन एक्स, इसको बनाने के लिए जो जीन होगी वो इस पूरे लंबे से डीएनए पर जो वो पोर्शन होगा, जो सीक्वेंस होगी, उसको फिर हम नाम देंगे, दिस इज बेसिकली नोन एज एलील. इस लोकेशन को हम क्या नाम देते हैं? एलील. अब सपोज ये एलील प्रोटीन एक्स बनाती है, और एक इंडिविजुअल है पॉपुलेशन में जिसमें क्रोमोसोम नंबर से फॉर एग्जांपल 2 पर, इस पोजीशन पर ये प्रोटीन बनाने के लिए जेनेटिक सीक्वेंस मौजूद है, तो हम कहते हैं एलील. अब देयर इज पर्सन बी, एक और बंदा है, उस बंदे के क्रोमोसोम 2 पर इसी पोजीशन पर जो सीक्वेंस है वो इससे डिफरेंट है. सो दिस इज पर्सन नंबर 1, दिस इज पर्सन नंबर 2, राइट. तो पर्सन 2 में सेम क्रोमोसोम, सेम पोजीशन, सेम जीन, इसमें भी प्रोटीन एक्स बनाना है, लेकिन इसमें थोड़ी सी वेरिएशन है. तो यहाँ जो प्रोटीन एक्स बनेगा उसको हम कहते हैं एक्स प्राइम से फॉर एग्जाम्पल. सो वही प्रोटीन है, से फॉर एग्जांपल ये प्रोटीन आपके बोन के स्ट्रक्चर में हेल्प करती है. तो इस बंदे की बोन थोड़ी डिफरेंट होगी, इस बंदे की बोन थोड़ी डिफरेंट होगी, बिकॉज
इनकी जो अलील्स हैं, अब ये गौर से सुने, इनकी जो अलील्स हैं ये 100% सिमिलर नहीं है, इनमें पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि सेम पोजीशन पर जो अलील्स हैं वो इसमें अलग हैं और इसमें अलग हैं। दिस इज व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म एंड दिस इज व्हाई वी आर ऑल डिफरेंट। हमारी सबका बेसिक तो जेनेटिक स्ट्रक्चर एक जैसा है, लेकिन विद इन द सीक्वेंस ऑफ जीन्स देर आर सर्टेन डिफरेंसेज एंड दैट्स व्हाई वी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, राइट। हर एक का इंटेलिजेंस लेवल एक जैसा नहीं है, हर एक का स्किन कलर एक जैसा नहीं है, बिकॉज देर आर पॉलीमॉर्फिज्म ऑन द एलिलिक पोजीशन। सो जीन जिस पोजीशन पर होती है उसको हम नाम देते हैं या लोकस या ओवरऑल इसको अलील कहा जाता है। तो ये आपको नाम समझना है कि व्हाट डू वी मीन बाय एलील, ओके। अच्छा, अब एक और आपको बात याद रखनी है कि मेल और फीमेल जेंडर जो डिफरेंसेस हैं, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द gender chromosomes. In females they are XX and in males the genetic composition is the chromosome X and Y. Okay, ये आपको पता भी है कि मेल्स में there are XY and in females there is XX. बाकी जो यानी इसको हम ऐसे कहते हैं कि there are 46 chromosome, या इसको मैं यूं कह लूँ there are 23 pairs of chromosome, या मैं इसको यूं कह लूँ कि भाई there are 22 pairs of autosomes प्लस 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। अब अगर वो सेक्स क्रोमोसोम XY है तो ये बंदा मेल हो गया, अगर वो सेक्स क्रोमोसोम XX है तो वो बंदी फीमेल हो गई। सो दैट्स हाउ इट इज डिस्कस्ड, राइट। तो ये सारे आपको टर्म्स पता होने चाहिए। 46 इज कॉल्ड 2N या डिप्लॉयड, 23 इज कॉल्ड N या हैप्लॉयड, ओके। नाउ दीज आर सम टर्मिनोलॉजीज जो आपको पता होनी चाहिए, सिंपल है। डोमिनेंट जीन का मतलब होता है द जीन द अलील विच इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड ओवर द अदर। सो फॉर एग्जांपल मेरा कोई भी एक सेल है, उसमें मैंने आपको बताया ना कि वी हैव 46 क्रोमोसोम, राइट। तो 46 क्रोमोसोम में हमेशा जो 23 क्रोमोसोम है ये मुझे फादर से मिले हैं और 23 क्रोमोसोम मुझे मदर से मिले हैं, मेरे बायोलॉजिकल फादर और बायोलॉजिकल मदर से। यानी हर क्रोमोसोम में एक पेयर की फॉर्म में है ना, देयर आर 23 पेयर्स। तो एक क्रोमोसोम होगा क्रोमोसोम नंबर 1 जो मुझे फादर से भी मिलेगा और क्रोमोसोम नंबर 1 मुझे मदर से भी मिलेगा। दिस इज कॉल्ड होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अब इसमें होता ये है कि सपोज देयर इज अ जीन, किसी भी हाइट की जीन ले लें, सपोज यहाँ पे हाइट की जीन है इस अलीलिक पोजीशन पर, और यहाँ मदर में भी हाइट की जीन है और उसको मैं अलग कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। सो ये मेरी सेम पोजीशन पर मदर की हाइट की जीन है। सो आई हैव हाइट का जो मेरा कॉम्बो है वो, उसमें मेरे पास 2 अलील एक्सप्रेस हो रही है, एक फादर और एक मदर। अब जो डोमिनेंट अलील होगी दैट वुड एक्सप्रेस, सो सपोज मेरी, मैं इसको बहुत ही लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ आपको, राइट, ताकि बात समझ में आ जाए। ये इतना सिंपल इस तरह से होता नहीं, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि सपोज मेरी फादर की जीन कहती है कि आई हैव टू बी टॉल, राइट, ये उसका ट्रेट है, ये उसका कैरेक्टर है। और मेरी मदर की जीन कहती है कि आई हैव टू बी डॉर्फ, मुझे कद छोटा होना चाहिए, बिकॉज मेरी मॉम की जीन ये कह रही है, राइट। अब इन दोनों जीन्स में से इफ द टॉल जीन विंस एंड इफ आई एम टॉल, then the tall gene, my father's gene, is known as dominant, right? तो और ये वाली बेचारी जीन हार गई ना, यानी इसकी बात नहीं सुनी गई, मैं डॉफ नहीं हुआ, तो ऐसी जीन को हम कहते हैं रिसेसिव। सो देयर आर सर्टेन ट्रेट्स जो सिर्फ उस वक्त एक्सप्रेस होते हैं कि जब वो दोनों पोजीशन पर रिसेसिव हों। सो फॉर एग्जांपल, अगर मेरे फादर की तरफ से भी मुझे जो जीन्स मिलती, वो उन्होंने यही कहना था कि जी डॉर्फी होना। नाउ सी, ऑन बोथ द पोजीशन ये तो तय है कि मेरे हर ट्रेट के लिए मेरे पास 2 जीन्स हैं, 2 अलील्स हैं। अब अगर वो दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं तो मेरा ट्रेट वही होगा। अब यानी इस सिनेरियो में द मदर जीन इज सेइंग आई शुड बी डॉफ, द फादर जीन इज सेइंग आई शुड बी डॉफ, आई विल बी डॉफ, बिकॉज दोनों रिसेसिव जीन्स एक जगह जमा हो गई हैं। सो देयर इज नो चांस कि आई एम टॉल, राइट। अच्छा, फिर देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कैरियर जीन। कैरियर जीन का कॉन्सेप्ट ये है कि सपोज ये एक क्रोमोसोम ये है, दूसरा क्रोमोसोम ये है, राइट, एंड देन माय फादर हैज गिवन मी अ जीन फॉर एनीथिंग व्हिच इज हेल्दी, से फॉर एग्जांपल इट्स CFTR जीन, सपोज दिस इज वेरी वेरी नॉर्मल, सिस्टिक फाइब्रोसिस की बात कर रहा हूँ। लेकिन सपोज मुझे मेरी मदर से जो जीन मिल रही है दैट्स अ लिटिल म्यूटेटेड एंड दैट हैज अ पोटेंशियल कि मुझे सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाए। सो अब हो ये रहा है कि आई एम नॉट होमोजाइगस, I'm heterozygous for this particular gene. इस particular gene के लिए मैं heterozygous हूँ। What do we mean by that? Heterozygous basically means कि मैं same gene, same allelic position पर father से जो trait है वो different है, mother से जो trait है वो different है। तो this is called heterozygous। अगर दोनों तरफ trait एक जैसे हो, जैसे यहाँ मैं बात कर रहा था, दोनों तरफ से dwarfism की gene है, this is then known as homozygous trait. This is heterozygous, different alleles, this is homozygous, right? अब in this particular scenario,
I will not be having cystic fibrosis because ये जो normal gene है that is dominant over the disease gene, so this is recessive. Although I am not having the disease, I do have an abnormal genetic sequence. और हो सकता है मेरा जो sperm बने, next sperm that I produce and this sperm which mates with ovum, हो सकता है कि इस स्पर्म में जब मेरे जीन्स ट्रांसफर हो रहे हो तो ये हेल्दी वाला नहीं, ये वाला जीन ट्रांसफर हो जाए इस पोजीशन का. देयर आर इक्वल चांसेस, राइट? दिस इज जस्ट बाय चांस थिंग कि कौन सा स्पर्म जाकर के मेट करेगा ओवम के साथ. सो भाई अगर ये वाला स्पर्म मेट कर गया तो नाउ आई एम ट्रांसफरिंग द डिजीज, राइट? और अगर से फॉर एग्जांपल इस फीमेल के पास भी यही वाला म्यूटेशन हुआ, अब जो बेबी बनेगा उसमें डेफिनेटली डिजीज होगा. सो आई वाज नॉर्मल बिकॉज आई हैड एन हेटेरोजाइगस कंडीशन बट आई वाज कैरिंग द जीन, देयरफॉर आई एम कॉल्ड अ कैरियर, राइट? सो दिस इज कॉल्ड अ कैरियर जीन विच इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन. अच्छा, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ट्रेड ऐसे होते हैं कि उसमें दोनों जीन डोमिनेंट और रिसेसिव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता. ये भी और ये भी दोनों मिलके अपना अपना कैरेक्टर शो करती हैं. जैसे ब्लड ग्रुप है, अगर सपोज मुझे फादर से जो जीन मिली है उसमें इस पोजीशन पर ऑर्डर ये है कि भाई ब्लड ग्रुप ए बनना चाहिए, मदर से जो मिली है उस पर ऑर्डर ये है कि ब्लड ग्रुप बी बनना चाहिए. अब अगर ब्लड ग्रुप ए डोमिनेंट होता तो मेरा ब्लड ग्रुप ए हो जाता, अगर ब्लड ग्रुप बी डोमिनेंट होता तो मेरा ब्लड ग्रुप बी हो जाता. लेकिन ऐसा नहीं होता, ये दोनों साथ इक्वल एक्सप्रेस होते हैं. दिस इज कॉल्ड कोडोमिनेंस, राइट? ब्लड ग्रुप ए भी एक्सप्रेस होता है और बी भी. देयरफॉर द बेबी व्हिच इज प्रोड्यूस हैज द ब्लड ग्रुप ए बी. दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंट जीन्स, दोनों एक साथ एक्सप्रेस होती हैं. देन there are some genes which are called sex-linked genes. These are all the genes which are present either on the X chromosome or Y chromosome. या दूसरे अल्फाज में वो तमाम genes जो जेंडर क्रोमोसोम या एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम पर होती हैं, सेक्स क्रोमोसोम पर, उन्हें हम कहते हैं सेक्स लिंक जीन्स. फिर एक टर्मिनोलॉजी है सेक्स लिमिटेड जीन्स. सेक्स लिमिटेड जीन्स का मतलब ये है कि ये बेसिकली, इनका नाम तो सेक्स लिमिटेड है, होती ये ऑटोसोम्स पर है. इसका बेसिकली मतलब ये है कि ये सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर जेंडर में होंगी. जैसे बॉल्डनेस की जो जीन है, गंजा होने की, वो मेल्स में प्रीडोमिनेंट है ना, इसीलिए बॉल्डनेस यू सी मोर इन मेल्स. सो दीज आर लिमिटेड टू मेल्स बिकॉज दीज आर जेंडर लिमिटेड, किसी एक पर्टिकुलर जेंडर में होंगी. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड सेक्स लिमिटेड, right? Then there are genes which are called structural genes. They are particularly important for making proteins which contribute to the structure, such as fibrillin, collagen. These are all structural genes. Then there are regulatory genes which help forming enzymes which control different functions of the body. So ये basic terms हैं boss. I guess आपको ये अच्छे से समझ में आ गई हैं, right? Continue करते हैं. जो terminologies का game है वो अभी चल रहा है, आपको समझना है सारी terminologies. और अब जो terminologies आएंगी ज्यादातर हम एक्चुअली डिस्कस कर चुके हैं, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल वी नो व्हाट इज इनहेरिटेंस. इसका मतलब ये है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफॉर्म होते हैं. रिप्रोडक्शन इज मेकिंग न्यू बेबीज, इज एज सिंपल एज दैट, राइट? लोकस में आपको बता चुका हूं, अलील्स में आपको बता चुका हूं, वीडियो पीछे जाके देख लो, समझ में आ जाएगा. होमोजाइगस अलील्स भी मैं आपको बता चुका हूं. अगर दोनों तरफ क्रोमोसोम पर एक जैसी अलील्स हों, फादर और मदर से एक जैसी, दिस इज कॉल्ड होमोजाइगस. एंड अदरवाइज वी कॉल इट हेटेरोजाइगस इफ दे आर डिफरेंट. तो ये तो आपको इजीली समझ में आ गया, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस व्हेन अलील्स आर डिसिमिलर. फादर से अलग अलील आई है, मदर से अलग अलील आई है. मल्टीपल अलील्स का मतलब ये है जब एक पॉपुलेशन में, मतलब मैंने आपको ये डिटेल में बता दिया कि इफ दिस इज पर्सन, उसका ये सेल है, उसके एक क्रोमोसोम नंबर से फॉर एग्जांपल 2 पर, इस पोजीशन पर जो जेनेटिक सीक्वेंस है वो दूसरे बंदे के सेम क्रोमोसोम 2 के सेम पोजीशन पर जो स्ट्रक्चर उससे डिफरेंट है. सो सेम क्रोमोसोम है, सेम पोजीशन है, लेकिन सीक्वेंस अलग अलग है. इसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, मल्टीपल अलील या पॉलीमॉर्फिज्म, राइट? एंड बिकॉज ऑफ दिस पॉलीमॉर्फिज्म वी आर ऑल डिफरेंट. म्यूटेशन का मतलब है जेनेटिक सीक्वेंस में किसी भी तरह का चेंज हो जाना. सो म्यूटेशन इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि भाई म्यूटेशन होगा तो आरएनए गड़बड़ बनेगा, आरएनए गड़बड़ बनेगा तो प्रोटीन गड़बड़ बनेगी, फंक्शन डिस्टर्ब होगा. ओके, सो म्यूटेशन इज नॉट गुड. कैंसर्स में होता यही है यार, म्यूटेशन होती है. ओके, राइट. अब बात करते हैं, कुछ थोड़ा सा टच मुझे करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, पर्टिकुलरली मेंडल्स लॉ. टॉपिक तो ये डिटेल में बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस होता है, बट लेट्स गो थ्रू दिस वेरी वेरी क्विकली. नाउ द फर्स्ट ऑफ द मेंडल्स लॉ. अच्छा, अब ये आपको बात ये समझनी है कि ऐसा नहीं है कि कोई एक लॉ प्रिवेल करेगा जब हम जेनेटिक्स या इनहेरिटेंस पढ़ेंगे,
for some set of characters this is the law which is prevailing and you have to remember this. For some this is the law. ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मैथमेटिक्स के लॉज होते हैं कि अगर 2 + 2 होगा so that becomes 4, then 2 × 2 is equal to 4, but these two are not the same thing. और ये ऐसा भी नहीं है कि जब प्लस होगा तो मल्टीप्लाई का रूल नहीं लग सकता. सो जब मल्टीप्लाई होगा तो भाई ये वाला रूल लगेगा, जब प्लस होगा तो ज़ाहिर ये वाला रूल लगेगा. इसी तरह जब 2 - 2 होगा तो द आंसर विल बी 0 एंड 2 / 2 होगा तो आंसर विल बी 1. सो दीज आर 4 रूल सेट्स जो मैथमेटिक्स में हमारे पास है ना, बेसिक एडिशन सब्सट्रैक्शन के. बिल्कुल ऐसे ही ये 3 लॉज आपको याद रखने हैं. अलग अलग ट्रेड्स पर ये अलग अलग लॉज लग रहे होते हैं. सो फॉर एग्जांपल द लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी, इसका मतलब ये है कि जब क्रॉसिंग ओवर होती है, मियोसिस का प्रोसेस होता है, गैमेट्स बनते हैं. सो द क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द 2 होमोजाइगोट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स रिजल्ट इन द ऑफस्प्रिंग दैट आर आइडेंटिकल एंड हेटेरोजाइगोट एंड द इनहेरिटेड कैरेक्टर्स डू नॉट ब्लेंड. यानी जो फादर से कैरेक्टर आएगा इस एक पर्टिकुलर लोकस पर, जो मदर से कैरेक्टर आएगा इस एक पर्टिकुलर लोकस पर, जब ये जाइगोट में मौजूद होंगे, सो दिस एंड दिस दे आर डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टर्स एंड दिस ऑर्गेनिज्म विल बी नोन एज अ हेटेरोजाइगोट because they have different characteristics, right? They do not blend. The inherited characters do not blend. This is called law of uniformity. Yani this is a uniform character and this is a uniform character. They do not blend with each other. Okay? And then the law of segregation का मतलब ये है कि segregation of alleles occur during the process of gamete formation and randomly united at fertilization. This is also very important. यानी हमारे cells में जब मियोसिस का प्रोसेस होगा जर्म सेल्स के प्रोजेनिटर्स में, तो जो स्पर्म बनेंगे और जो ओवम जनरेट होगा फीमेल्स में, ज़ाहिर है वी हैव अ लॉट ऑफ ओवा इन द फीमेल, राइट? एंड सिमिलरली वी हैव लाइक मिलियंस ऑफ स्पर्म्स इन द मेल. अब कौन सा स्पर्म जाकर के किस ओवम के साथ कंबाइन कर रहा है, इसी से तय होगा कि कौन सा सेट ऑफ जीन्स इन स्पर्म विल कंबाइन विद द सेट ऑफ जीन्स इन द ओवम. एंड दिस इज एब्सोल्युटली अ रैंडम प्रोसेस, यू कैन नॉट कंट्रोल इट. सो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के पहले स्टेप में मियोसिस के जरिए अलील्स सेपरेट हो जाती हैं एंड देन इन द नेक्स्ट फेज दे कंबाइन टुगेदर वाया अ रैंडम प्रोसेस व्हिच इज द fertilization. So randomly united at fertilization. Then there is another law which is called law of independent assortment, and this particular law states that the traits are transmitted to the offspring independently of one another. यानी अगर हेयर कलर का ट्रेट ट्रांसफर हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है ये स्किन कलर के ट्रेट को इनहिबिट करेगा, वो अपना ट्रांसफर होगा, ये अपना ट्रांसफर होगा. दिस इज वाउ वी हैव ऑल द डिफरेंट ट्रेट्स अवेलेबल इन वन इंडिविजुअल. यानी ऐसा तो नहीं होता ना कि एक ऑर्गेनिज्म बन गया और इस ऑर्गेनिज्म में सिर्फ हेयर कलर का ट्रेट ट्रांसफर होगा, बाकी इंटेलिजेंस गई भाड़ में, स्किन कलर गया, ऐसा तो नहीं होता. सारे ट्रेट्स एग्जिबिट होते हैं इस ऑर्गेनिज्म में बिकॉज ऑल द ट्रेट्स दे ट्रांसफर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. सो ये 3 लॉज हैं जो गवर्न करते हैं पूरी जेनेटिक्स को, तो इनका आइडिया आपको अच्छे से होना चाहिए, राइट? अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है विच इज द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर. के बॉडी में जो सेल्स हैं उन सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमैटिन है, वो जो क्रोमोसोम्स हैं वो किस तरह ऑर्गेनाइज होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है. सो दिस इज़ वेरी पाइवटल इंफॉर्मेशन as far as the genetic studies are concerned, and the first thing to understand is the structure of chromosome, right? Now all the chromosomes consist of 2 parallel identical filament-like structures and these are called chromatid. यानी हर क्रोमोसोम इस तरह से आपको एक क्रोमोसोम नहीं होता, ये बेसिकली 2 पैरेलल ऐसे स्ट्रैंड्स होते हैं and these each strand is known as a chromatid, and if you see they are joined together at certain point and this point is known as centromere. तो डायग्रामेटिकली कार्टून वाइज हम इसको ऐसे बनाते हैं कि ये एक क्रोमैटिड है पूरा, दिस इज वन क्रोमैटिड, राइट? दिस इज अनदर क्रोमैटिड एंड दे आर जॉइंट एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड centromere, and end of the chromatid is known as telomere. So this is the telomere region, this is the telomere region. Okay, ये एंड भी और ये एंड भी. अब आप ये नोटिस करेंगे मुख्तलिफ जेनेटिक्स की बुक्स में, और यहाँ भी ये चीज़ एक्सप्लेन करना ज़रूरी है कि सेंट्रोमियर की पोजीशनिंग के हिसाब से द क्रोमोसोम्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स, राइट? सो फॉर एग्जांपल दिस इज़ वन कैटेगरी, स्ट्रक्चरल कैटेगरी ऑफ क्रोमोसोम. दीज आर कॉल्ड मेटासेंट्रिक. इसका मतलब ये है कि जो सेंट्रोमियर है वो इन क्रोमैटिड्स के मिडवे होता है. सो इफ यू लुक एट हियर दिस इज द मिडवे, ऊपर भी उतना ही क्रोमैटिड है जितना नीचे क्रोमैटिड है, तो बराबर बराबर हिस्से बन गए ना क्रोमैटिड के. सो इफ द सेंट्रोमियर इज लाइंग एट द मिडल ऑफ द क्रोमैटिड्स दिस इज कॉल्ड मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम. नाउ कंपेयर दिस वन, दिस इज द सेकंड कैटेगरी जिसमें
जो सेंट्रोमियर है इट इज मूव्ड अ लिटिल बिट अप, तो इससे हुआ ये है कि एक शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमैटिड या शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम बन गया है और दूसरा लॉन्ग बन गया है। देखिए ना, दिस इज लॉन्गर एज कंपेयर टू दिस विच इज अ शॉर्टर पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम। अच्छा, ये यूं भी हो सकता है कि क्रोमैटिड यहाँ मूव कर जाए और यहाँ पर लॉन्ग आर्म बन जाए और यहाँ पे शॉर्ट आर्म बन जाए, दैट्स द सेम थिंग, राइट? दिस इज कॉल्ड सबसेंट्रिक टाइप ऑफ क्रोमोसोम। एंड देन देयर इज वन कैटेगरी जिसमें कि पूरे का पूरा सेंट्रोमियर एक कॉर्नर पे जाके अटैच हो गया है और क्रोमैटिड बेसिकली एक ही साइड पर है, दूसरी तरफ छोटे से सैटेलाइट रीजन्स हैं। दिस इज कॉल्ड एक्रोसेंट्रिक। सो बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, इफ द सेंट्रोमियर इज इन द मिडल इट इज मेटासेंट्रिक, ये वाला क्रोमोसोम। इफ इट इज नियर वन एंड, आइदर दिस पोल और दिस पोल, this leads to generation of a short arm and a long arm. This is called subcentric. And if it is at the corner, then this is called the acrocentric type of chromosome. तो ये आपको बताना चाहिए। And this is also an important notion. Short arm को हम represent करते हैं P से और long arm को हम represent करते हैं Q से। ये अक्सर यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहीं लिखूंगा 11P, so 11P का मतलब है क्रोमोसोम नंबर 11 का शॉर्ट आर्म की मैं बात कर रहा हूं। और इससे मुझे ये भी पता चल रहा है कि ये जो क्रोमोसोम है ये इन तीनों में से किस कैटेगरी का है, ये सब सेंट्रिक कैटेगरी का है, इसीलिए तो इसमें P और Q डिवाइड हुए हैं। अगर ये बिल्कुल मेटासेंट्रिक होता तो P और Q का जिक्र नहीं होना था, है ना? सो एज पर द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर दे आर डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज। ये हमारी बात हो गई। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट नोशन टू अंडरस्टैंड इज द ग्रुपिंग इन द अरेंजमेंट। सो द क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ। द फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम, अच्छा पेयर क्यों? हमेशा क्रोमोसोम्स वी गेट वन फ्रॉम फादर, वन फ्रॉम मदर। सो हमारे पास टोटल 46 जो क्रोमोसोम्स हैं, दे आर प्रेजेंट एज 23 पेयर्स, राइट? सो जो फर्स्ट पेयर है इट इज द लॉन्गेस्ट और जो 22nd पेयर है इट इज द शॉर्टेस्ट। 23rd पेयर कहाँ गया? ये तो एक्स और वाई होते हैं, इनकी मॉर्फोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट होती है, राइट? अगर आप इसकी डायग्राम देखें ना इस तरह से, थोड़ा छोटा करते हैं इसको, दिस इज हाउ दे आर अरेंज्ड। यू सी क्रोमोसोम नंबर 1 जो है दैट इज द लॉन्गेस्ट इन लेंथ, फिर ये छोटी होती जा रही है इनकी लेंथ, ओके? सो और आखिरी जो पेयर 22 पेयर ऐसे होंगे और हर क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में होगा। सो इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिड्स, राइट? दो स्ट्रैंड्स होंगे और नंबर 1 इज द लॉन्गेस्ट क्रोमोसोम, नंबर 2 इज द देन स्मॉलर देन नंबर 1, नंबर 3 इज फर्दर स्मॉलर एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। एंड ऑल्सो इफ यू सी दे आर कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन इफ दे आर सबसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक। सो क्रोमोसोम नंबर 1 to 3 अगर आप देखें, ऑल 3 ऑफ देम, इन तीनों में सेंट्रोमियर मिडिल में है। देखें, दिस इज वेयर द सेंट्रोमियर इज। सो दे आर ऑल व्हाट कैटेगरी? दीज आर ऑल मेटासेंट्रिक कैटेगरी एंड दिस इज प्रेजेंटेड इन दिस टेबल कि क्रोमोसोम नंबर 1 to 3 आर मेटासेंट्रिक, दे आर वेरी लार्ज। क्रोमोसोम 4 and 5 आर सब मेटासेंट्रिक। क्रोमोसोम 6, 12 and X आर मीडियम साइज सब मेटासेंट्रिक। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गाइज, आपको हर वर्ड का मतलब पता, यू नो व्हाट इज एक्रोसेंट्रिक, यू नो व्हाट इज सबसेंट्रिक। डायग्राम देखते जाओ, समझी जाओ। सो ये देखो क्रोमोसोम 21, 22 दीज आर एक्रोसेंट्रिक। देखिए जरा टेबल से कोरिलेट कर रहा है, 21, 22 acrocentric, yes. And also Y chromosome is acrocentric. Now it's not looking like acrocentric but it actually is acrocentric. Diagrammatically कुछ थोड़ा इसमें हिच पिच हो गया है, right? So this is all very very high yield information. हमारे पास ऑरोसोम्स के 22 पेयर्स हैं और एक पेयर है सेक्स क्रोमोसोम्स का। अगर वो मेल बॉडी है तो XY, अगर वो फीमेल बॉडी है तो XX, ओके? सो ये कहानी आपको समझ में आ गई। अब पोजीशन ऑफ, ये तो हम बात एक्चुअली कर चुके हैं, सो इसको मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। नाउ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, मैपिंग ऑफ क्रोमोसोम अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ देयर आर्म एंड पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर इज कॉल्ड कैरियोटाइपिंग। ये जो हमने यहाँ पे पोजीशनिंग करी है ना कि इसमें मेटासेंट्रिक है, इसमें ऊपर है, इसमें नीचे है, सब मेटासेंट्रिक, और कौन सा क्रोमोसोम लंबा है, कौन सा छोटा है, इस पूरे प्रोसेस को हम नाम देते हैं कैरियोटाइपिंग। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि कैरियोटाइपिंग से आपको ग्रॉस मॉर्फोलॉजी पता चलती है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं देखता हूँ इसमें डायग्राम है, मेरा ख्याल नहीं दी, ये क्या है, ये इस तरह से देखें क्रोमोसोम्स आपको दिखते हैं। सो क्रोमोसोम 1, 2, 3 इनके सेंट्रोमियर, अब ये बिल्कुल देखो जुड़े हुए नहीं है और ये ऐसे ही होते हैं रियल लाइफ में, थोड़े थोड़े से सेपरेट होते हैं। डायग्राम में तो हम ऐसे बनाते हैं कि सेंट्रोमियर शायद बिल्कुल ही कड़प ऐसे चिपका हुआ है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इनमें इस तरह का अगर गैप आपको नजर आ रहा है तो ये उसके रीजन ये नहीं है कि इन दोनों को चिपका होना चाहिए था। इसका रीजन बेसिकली ये है कि दीज आर होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। अगर फर्दर आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे देखेंगे और ज्यादा हाई यील्ड में देखेंगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंट क्रोमैटिड्स भी नजर आ जाएंगे, बट दिस इज हाउ यू लुक एट देम। ईच क्रोमोसोमल पेयर
इज बेसिकली होमोलोगस पेयर. सो क्रोमोसोम 1 की अगर मैं बात करूं, दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1, तो यहाँ पे दो होमोलोगस पेयर आपको दिख रहे हैं. वन इज डेफिनेटली कमिंग फ्रॉम योर फादर, वन इज डेफिनेटली कमिंग फ्रॉम द मदर, और हर क्रोमोसोम के लिए दिस इज ट्रू. तो 22 क्रोमोसोम तक तो ऐसे ही है, दो दो आपको मिलेंगे, लेकिन एक होगा एक्स और दूसरा होगा वाई क्रोमोसोम, राइट. दीज आर द जेंडर क्रोमोसोम्स. अच्छा, अब आपको एक बात और नोट करनी है, वो ये कि ये जो पूरा यहाँ पे क्रोमोसोम का खाका खींचा है ना, जो पूरी जन्म कुंडली बनाई है क्रोमोसोम्स की, उसमें इंपॉर्टेंट क्या है. देखें, कभी कभी ऐसे होता है कि एट वन पर्टिकुलर पोजीशन आपको 3 क्रोमोसोम दिखते हैं. अब यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 21 दिखाया ना, सपोज यहाँ पे अगर एक क्रोमोसोम और दिख जाता तो इस सिचुएशन को हम नाम देते हैं ट्राइसोमी 21, एंड दिस इज व्हाट यू कॉल द डाउन सिंड्रोम, राइट. सो ये इंपॉर्टेंट है. कहीं कहीं आपको ऐसे होता है कि एक पूरा क्रोमोसोम मिसिंग होता है, तो आप कहते हैं वो दिस इज मोनोसोमी. तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए. कहाँ से पता लगेंगी? आपको कैरियोटाइपिंग से पता लगेंगी. ओके. अच्छा, ह्यूमन क्रोमोसोम्स बने किस चीज़ से होते हैं भाई? ये बने होते हैं बेसिकली फ्रॉम द डीएनए एंड ओनली अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएनए. तो आरएनए के भी कुछ पीसेस होते हैं हमारे क्रोमोसोम में. द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द डीएनए, यू नो, इट इज कॉल्ड डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड द फंक्शंस आर, देखो बात यह है कि सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो आपके न्यूक्लियस में इन थ्रेड्स में मौजूद है. अल्टीमेटली ये थ्रेड बनता है मेड अप ऑफ डीएनए. अच्छा, आपका सेल केपेबल है डीएनए से डीएनए बना सकता है. इसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन, यानी अपने आप को डबल कर रहा है. और ये माइटोसिस में होता भी है. सेल डिवीजन के वक्त आपको डीएनए की एक्स्ट्रा कॉपी बनानी पड़ती है. देन यू कैन ऑल्सो डू डीएनए टू आरएनए, एंड दिस हैपन्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द फंक्शंस ऑफ द बॉडी आर to be performed by proteins, और RNA किस में कन्वर्ट होता है देन? प्रोटीन. So the DNA to RNA is called transcription, and RNA to protein is called translation, and DNA to DNA is called this is called replication. So ये सब आप लोग वीडियो को बार बार सुन लो और समझ लो, मैं थोड़ा तेजी से बोल गया. But anyways, your genetic material can form DNA to DNA, DNA to RNA, right? And then RNA can be of different categories: messenger RNA, transfer RNA, ribosomal RNA. Ultimately they make proteins, and proteins bring about all the functions in your body. Okay. Now what is Barr body? Barr body is an inactivated, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसको गौर से समझ लो. It is an inactivated X chromosome attached to the nuclear membrane. It was discovered by Barr and Bertman. ये बहुत पुरानी बात हो गई है अब, बट ये फीमेल्स में आइडेंटिफाई हुआ था, वो भी कैट्स में. होता ये है कि इन फीमेल्स, फीमेल का सेक्स कॉम्पोजिशन आपको पता है, दे आर एक्स एंड एक्स. सो दे गेट एक्स फ्रॉम द फादर एंड ऑल्सो एक्स फ्रॉम द मदर. अच्छा, मदर से तो इनको मिल ही एक्स सकता है, बट फादर के पास दो ऑप्शन थे. कुछ स्पर्म्स ऐसे थे जिनमें एक्स क्रोमोसोम था, कुछ स्पर्म ऐसे थे जिनमें वाई क्रोमोसोम था. अगर एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म कंबाइन कर जाए ओवम के साथ, देन यू गेट अ फीमेल. एंड इफ वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म कंबाइन कर जाए ओवम के साथ, देन यू गेट अ मेल. सो बेसिकली द बेबी विच इज बॉर्न आइदर मेल और फीमेल इज डिपेंडेंट ऑन विच स्पर्म फ्यूजेस विद द ओवम, क्योंकि ओवम में तो होना ही एक्स है. अगर एक फीमेल में, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ, 10 लाख भी ओवम अगर भाई निकल रहे हैं, वैसे तो एक या दो निकल रहे होते हैं, होते बहुत सारे हैं, बट मेच्योर होके एक या दो ही निकलते हैं पर मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो उनमें तो एक ही ऑप्शन है, दे ओनली कंटेन एक्स क्रोमोसोम. इट इज द मेल. मेल में मिलियंस ऑफ स्पर्म्स हैं, और वो पर इजैकुलेट, हर इजैकुलेट में देयर आर मिलियंस ऑफ स्पर्म्स, और उनमें से कुछ स्पर्म्स में एक्स क्रोमोसोम होगा, कुछ में वाई क्रोमोसोम होगा. इट्स अ रैंडम प्रोसेस. अगर एक्स वाला मिल गया तो फीमेल बेबी हो जाएगा, वाई वाला. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, ओके, कि मेल बेबी होगा या फीमेल बेबी होगा, डिपेंड्स अपॉन विच स्पर्म फ्यूजेस. ओके. नाउ इन फीमेल वी हैव एक्स एंड एक्स. देयर आर 2 एक्स क्रोमोसोम. वन ऑफ देम गेट्स इनएक्टिवेटेड, क्योंकि एक ही काफी है, दो में से एक को इनएक्टिवेट कर दिया जाता है, और वो जो इनएक्टिवेटेड क्रोमोसोम है, दैट इज नोन एज द बार बॉडी. एंड द बार बॉडी इज ऑल प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हेटेरोक्रोमैटिन, व्हिच मींस इट डज नॉट एक्सप्रेस. सो ये एक्सप्रेस ही नहीं करता अपने आप को, तो ये इनएक्टिव हो जाता है, नॉन फंक्शनल हो जाता है. नॉर्मली ये सिंगल बार बॉडी इज प्रेजेंट एंड ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम इज फंक्शनल, एंड दिस इज कॉल्ड लियॉन हाइपोथेसिस. ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये. अच्छा, मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, तो अगर इसी को इनएक्टिवेट कर देंगे तो कहानी खराब हो जाएगी ना. तो ये होता नहीं है इस तरह, मेल में ये एक्टिव रहता है. सो सिंस देयर इज ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम, देयर इज नो बार बॉडी, एंड वाई क्रोमोसोम इज स्मॉलर एंड इज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द मेल जेंडर. सो दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द मेल बाय कैरियोटाइपिंग. रिमेंबर, फीमेल बॉडी में जब आप सेल निकाल के कैरियोटाइपिंग करेंगे, 1 ऑफ द एक्स क्रोमोसोम विल बी अ
shortened inactive structure called the bar body. मेल में X chromosome active होता है. Okay. इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज़ हेल्पफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन केस ऑफ एम्बिग्विटी. सो यू डू द कैरियोटाइपिंग. इफ यू आइडेंटिफाई द फिनोटाइप ऑफ वाई क्रोमोसोम, यू डिक्लेयर इट एज अ मेल. ओके. कैरियोटाइपिंग इंट्रोडक्शन ये है कि भाई इट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स अकॉर्डिंग टू द लेंथ एंड द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर. ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं. प्रोसीजर की डिटेल में ऑब्वियसली आपको करना नहीं है ये प्रोसीजर, बट दैट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर. एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू गेट इज दिस डायग्राम, राइट. बट कुछ चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं which I have to go through. कि what you are looking at when you are doing karyotyping is how long are the chromosomes, what is the position of the centromere, the P and Q arm की positioning क्या है और bending pattern क्या है. This is how you segregate your chromosomes. The chromosomes are arranged according to their length in the descending order. सबसे लंबा chromosome पहले, this is chromosome 1 and then so on and so forth. ओके. इससे आपको पता चलता है कि जेंडर क्या है, बिकॉज यू कैन देन आइडेंटिफाई द बार बॉडीज एंड वाई क्रोमोसोम. यू कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई एनी एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम. जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, अगर क्रोमोसोम 21 पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मौजूद है, दिस इज देन द इंडिकेशन ऑफ ट्राइसोमी 21 डाउन सिंड्रोम. ओके. Now, after all the discussion that we have had कि जी सेल में एक न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, you also need to understand कि there is also some genetic material in the mitochondria and this is called mitochondrial DNA. In fact, mitochondria is the only organelle in the cytoplasm which contains the DNA. And actually हम ये सोचते हैं कि there were some cells invaded by bacteria and these bacteria then became mitochondria, and because these were bilkul individual living organism having their own DNA, that is why the mitochondria also has their own DNA. That's the hypothesis. Okay. A human cell has genetic material contained in the cell nucleus and also in the mitochondria. In humans the nuclear genome is divided into 23 pairs and the linear DNA molecule. ये सारा बात हम कर चुके हैं. जबकि जो mitochondrial genome है वो circular है. It is not thread like, it is not in the form of chromosomes, it is rather circular. Okay. Although the mitochondrial DNA is very small compared to the nuclear chromosome, it codes for 13 proteins. ये important बात है, अक्सर लोगों को ये बात नहीं पता होती, but this is very important. And these 13 proteins play a big role in the whole cell thing. Okay. And you should know कि भाई न्यूक्लियस के बजाय हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया भी एक ऐसी प्लेस है जहां पर बहुत सारा डीएनए मौजूद है. ओके. इनफैक्ट जब डीएनए है तो ये ट्रांसफॉर्म भी होगा टू द नेक्स्ट जनरेशन एंड देयरफॉर द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आल्सो अंडरगोज इनहेरिटेंस एंड देयर आर सर्टेन डिजीजेस. आसान सी बात है ना यार, ये अगर एक सेल है, उसका ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सेल डिवाइड हुआ, इसने ये स्पर्म बनाया, ये स्पर्म बनाया, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया आएगा ना इस स्पर्म के अंदर, और जब ये ओवम के साथ कंबाइन करेगा तो अब न्यूक्लियर डीएनए तो मिल गया लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी तो पहुंच गया. तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आल्सो गेट्स इनहेरिटेड एंड देयर आर सर्टेन डिजीजेस व्हिच आर एसोसिएटेड with mutations in the mitochondrial DNA, and those diseases for example include Leber's hereditary optic neuropathy. Is one of the major cause of blindness actually in adults, hereditary causes. And then there is another one which is called the Pearson-Marrow-Pancreas syndrome, loss of bone marrow early in childhood, highly fatal. Okay. Now the chromosomal aberrations. Chromosomal aberration का basically मतलब ये है कि if there are any changes in chromosomal numbers or structures, यानी normally हमारे पास कितने chromosomes होने चाहिए? 46. So for example if there is an individual who has 45 chromosomes, so इसमें एक missing है. कैसे मिसिंग है, कौन सा मिसिंग है, ये पता लगेगा हमको कैसे? कैरियोटाइपिंग से. और अगर इसमें फॉर एग्जांपल 46 की जगह 47 क्रोमोसोम है तो इसमें एक एक्स्ट्रा है. सच चेंजेस आर नोन एज क्रोमोसोमल एब्रेशन एंड बोथ द सिनेरियोज आर एबनॉर्मल. देयर विल बी सम डिजीज फिनोटाइप. Okay, and there are a lot of genetic aberrations. Some of them are actually explained here. Some of them. Okay, बात करते हैं इस पे. अच्छा, ये जो पेडिग्री एनालिसिस है इस पे मेरा ख्याल है हम थोड़ा सा हल्का सा टच करेंगे, बट प्लीज कीप दैट फॉर बायोकेमिस्ट्री. राइट, बायोकेमिस्ट्री में हर इनहेरिटेंस पैटर्न को डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया है. सो फॉर एग्जांपल ऑटोसोमल डोमिनेंट किस तरह से ट्रेट ट्रांसफर करता है वगैरह वगैरह वगैरह. यहाँ कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, वो हैंडी हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि इफ़ इट्स ड्रॉन, ये फैमिली ट्री जब हम बनाते हैं ना, तो उस फैमिली ट्री में इफ़ यू आर मेकिंग फॉर एग्जांपल अ स्क्वायर, दैट्स अ मेल. स्क्वायर इज एन एग्जांपल ऑफ अ मेल. अगर वो शेडेड है या ब्लैक है, सो दैट्स एन अफेक्टेड मेल. या नहीं, सब अफेक्टेड का मतलब ये इसको डिजीज होगी, सिस्टिक फाइब्रोसिस या जो भी हम बात कर रहे हैं. राइट, अगर हम खाली सर्कल बनाते हैं गोला, सो गोला इज फॉर फीमेल एंड शेडेड कलर्ड ब्लैक गोला इज फॉर डिजीज में फीमेल. एंड अगर हम इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं स्क्वायर लेकिन इस शेप में, इस ओरिएंटेशन में, तो इसका मतलब ये है कि हमें इस बंदे की जेंडर का नहीं पता. ओके,
ये अबॉर्शन की निशानी है, अलाइंड विद अ ड्रॉप। क्रॉस किया हुआ है तो मेल था लेकिन अब डेड हो गया है। इसी तरह अगर फीमेल होगी तो फीमेल थी और अब डेड हो गई है। ओके, अगर हाफ शेड है और हाफ ऐसे है तो ये बता रहे हैं आपको कि दैट्स हेटेरोजाइगस फॉर एनी पर्टिकुलर जीन, मेल ऐसे स्क्वायर में और फीमेल इसमें, राइट। और ये टारगेटेड लीजन टाइप की जो चीज़ नजर आ रही है, दिस इज बेसिकली इंडिकेटिव ऑफ एन एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। तो ये सारे बेसिक जनरल पैटर्न्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। फिर मैंने आपको बताया कि जो स्क्वायर है दैट इज अ मेल एंड सर्कल इज अ फीमेल, इनके बीच में एक लाइन है तो इनका मतलब इनमें मैरिज हुई हुई है, मीटिंग हुई हुई है। अगर डबल लाइन है सो दीज आर कजन मैरिजेस। ओके, इस पेडिग्री को पढ़ें, सो देयर इज अ मेल मैरिड टू अ फीमेल और इनके दो बच्चे हैं, उनमें से एक मेल है और एक फीमेल है। ओके, और अगर इस तरह से लाइन स्प्लिट हो रही है, ऐसे नहीं स्प्लिट हो रही, सो दिस मींस ट्विन्स। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डायजाइगोटिक ट्विन, क्योंकि इन ट्विन के बीच में आपस में कोई ताल्लुक नहीं दिखाया जैसे यहाँ दिखाया है। इन दोनों ट्विन्स को आपस में जोड़ा हुआ है, तो इसको मैं रीड ऐसे करूंगा कि दीज आर टू ब्रदर्स एंड दे आर मोनोजाइगोटिक ट्विन्स, बिकॉज ये इस तरह से रिप्रेजेंट किया है झोंपड़ी की तरह, एंड इन दोनों के बीच में भी एक लाइन बनाई हुई है। सो इजी चीजें यार, इसमें कोई इतना मसला नहीं है, राइट। अब देयर आर सम जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो उनको जरा देख लेते हैं। दे वेरी कॉमन वंस और इसीलिए इनको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सो विल स्टार्ट विद ट्राइसोमी 21, द डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में जो क्रोमोसोमल एब्रेशन है दैट इज ट्राइसोमी 21, यानी पोजीशन नंबर 21 पे 2 के बजाय कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 3। इट इज द मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल एनॉमली ड्यू टू न्यूमेरिकल एब्रेशन। और न्यूमेरिकल एब्रेशन क्या है? देयर इज द थर्ड क्रोमोसोम ऑन पोजीशन नंबर 21। ओके, this syndrome was described by Dr. Down in 1866. This is aneuploidy. Aneuploidy का मतलब होता है change in the number of chromosome. In aneuploidy, the chromosome may be 2n+1. 2n का मतलब है नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन, 2n का मतलब है 46 क्रोमोसोम, 2n का मतलब है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। अगर इसमें एक ऐड हो जाएगा तो इट बिकम्स 47, जैसे यहाँ ऐड हो गया है। एन्यूप्लाइडी कैन ऑल्सो बी 2n-1, उस केस में देयर विल बी 45 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एन्यूप्लाइडी। द डाउन सिंड्रोम, देयर इज ट्राइसोमी ऑफ विच क्रोमोसोम? 21. Okay, the number of chromosomes is total 47 क्योंकि इसमें there is an additional chromosome which means there is 2n+1 scenario. Now दिस हैपन्स इन ऑटोसोम। देखें क्रोमोसोम नंबर 21 क्या है? इट्स एन ऑटोसोम। मैंने आपको बताया ना 22 पेयर्स जो हैं वो ऑटोसोम्स हैं, और जो 23rd पेयर है दैट इज बेसिकली द जेंडर क्रोमोसोम, राइट। तो जो 21 पे ऑटोसोम है इसका मतलब एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड नहीं हो रहा है, सो देयर विल बी 47 आइदर फीमेल और मेल। सो डाउन सिंड्रोम कैन बी प्रेजेंट इन मेल और फीमेल, एनी वन ऑफ देम। ओके, it is very common, by the way, and it is very much tested in exams. This condition is commonly seen in elderly primary gravida or mothers suffering from viral infection during pregnancy, or if they are elderly. So usually कहा जाता है कि if the females are 40 plus, there are chances of Down syndrome to happen. Okay. What are the common features? Mental retardation, palpebral fissure, there is protruded tongue out of the mouth, the palate is narrow, the nasal bridge is flat, नाक के ऊपर ऐसे लगती चपटी नाक है, there are epicanthic fold on the eyes, short broad, these are all the features of Down syndrome, right? Obviously, to teach you the morphology of Down syndrome and management of Down syndrome patient is not the topic here. Okay, they just want to give you the flavor. At least you should know from the whole story कि जो Down syndrome है, this is actually trisomy 21. Okay, and Edward trisomy 18 and Patau trisomy 13. Although Down syndrome is the most famous trisomy, which is on chromosome 21, there are two other trisomies जो आपको पता होनी चाहिए. One is called Edward, the other is called Patau. Okay, and they usually die in the first month of their life. Down syndrome के patient they survive up to काफी सारे decades तक वो जिंदा रह सकते हैं with appropriate management, but they usually die, right? Then there are some diseases which, but ये नाम याद होना जरूरी है यार. Patau is 13 and Edward is 18. ये याद रखो. Disease due to autosomal structural aberration. Structural chromosomal aberration may be due to translocations, deletion, duplication, ring. ये जो हम अभी aberrations पढ़ रहे थे, that was in the numbers कि there is trisomy. एक क्रोमोसोम पूरे का पूरा ज्यादा है, but sometimes the chromosomal numbers are same, but उनका structure different हो जाता है. उनमें there is a piece of DNA which gets deleted, there is a piece of DNA which gets duplicated, there is a piece of DNA which get moved from this position to this position of the chromosome. All things happen. Okay. There is a syndrome called Cray-Ducat syndrome. This is due to deletion of a
P यानी शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5 और इसमें स्पेसिफिकली देयर इज अ कैट लाइक क्राई इन द इन्फेंट एंड सीवियर मेंटल रिटार्डेशन एंड क्रूडी कैट। इसमें क्या जेनेटिक फिनोमिना हो रहा है आपको याद रखना है। क्रोमोसोम नंबर इसमें सेम होगा 46, द पर्सन विल बी लुकिंग ओके क्रोमोसोम नंबर वाइज, नंबर्स एग्जैक्टली 46 ही होना है, बट 5p में देयर इज अ स्मॉल सेगमेंट डिलीटेड। देन देयर आर डिजीजेस व्हिच आर ड्यू टू न्यूमेरिकल एब्रेजन ऑफ जेंडर क्रोमोसोम। अभी जो हमने बात की थी चाहे वो क्रोमोसोम नंबर 21 हो या क्रोमोसोम नंबर 18 हो या 30, दीज आर ऑल ऑरोसोम्स। लेकिन अब देयर आर सर्टेन डिजीजेस जिसमें सेक्स क्रोमोसोम में गड़बड़ है। सो फॉर एग्जांपल टर्नर सिंड्रोम व्हिच इज 45 देख के आपको ये पता चल रहा है कि इसमें एक क्रोमोसोम मिसिंग है नॉर्मल से कंपैरिजन में, या एक क्रोमोसोम ज्यादा है, एक क्रोमोसोम मिसिंग है, क्योंकि नॉर्मल में कितने क्रोमोसोम होते हैं भाई 46, यहाँ पे एक क्रोमोसोम मिसिंग है इसीलिए तो 45 हुआ। एंड देन देयर इज ओनली एक्स क्रोमोसोम। अब यूजुअली ये ऐसे होना चाहिए ना कि या तो XX हो तो फीमेल हो या XY हो, तो सेक्स क्रोमोसोम 2 होने चाहिए, यहाँ नहीं है, यहाँ पे देयर इज वन सेक्स क्रोमोसोम missing. So what happens कि these are only 45X, one chromosome is missing, so there is no bar body seen in these individual. They are genetically female but they have only one X chromosome, फीमेल में 2 होने चाहिए ना। सो दूसरे का वैसे भी क्या हो जाता है, फीमेल्स में बार बॉडी बन जाती है, तो इन फीमेल्स में देयर विल बी नो बार बॉडी। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दे हैव शॉर्ट हाइट, दे हैव वेब्ड नेक, यू सी दे वेब्ड नेक लाइक दिस, नेक इस तरह से नहीं है इनकी, वेब्ड नेक है। दीज आर इंपॉर्टेंट एंड दे हैव ऑल्सो वेरी वाइड कैरिंग एंगल एट द एल्बो, बट अगेन फीचर्स याद रखना इस वक्त पर्पज नहीं है, बट यू शुड नो व्हाट इज टर्नर सिंड्रोम, इसकी जेनेटिक्स है क्या। Same going to Klinefelter syndrome, this is an additional chromosome, you see 47 हो गए और XXY situation है। ओ भाई समझ में नहीं आ रहा, अगर फीमेल होता तो XX होता, अगर मेल होता तो XY होता, ये तो कोई ऐसा सिनेरियो जिसमें XXY हुआ है। सो बेसिकली दीज आर जेनेटिकली मेल्स विद एन एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम एंड इसका भी इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा है, 1 in 1000 मेल्स में है। द इंडिविजुअल इज मेल जेनेटिकली विद एन एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम, और चूंकि एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम है तो दे विल हैव बार बॉडी। तो आपसे ये सवाल किया जा सकता है कि वो कौन सी कंडीशन है जिसमें मेल्स में बार बॉडी होती है। दैट इज अ पॉसिबिलिटी, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, बिकॉज दे हैव एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम। ओके, देन वी हैव, सो अब तक हम जो डिजीजेस देख रहे थे जेनेटिक्स ही, उसमें या तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑटोसोम में डिफरेंट हुआ था, या नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम में डिफरेंट हुआ था, या उनमें डिलीशन ट्रांसलोकेशन ये चीज़ें हुई थी। अब जो हम बात करेंगे दैट इज सिंगल जीन इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स। ये वो डिसऑर्डर्स हैं जिसमें सिंगल एक पर्टिकुलर जीन डिस्टर्ब होती है, राइट, एंड दे आर फॉलोड बाय डिफरेंट ट्रेट्स। फॉर एग्जांपल ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। जो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है दिस इज mainly for the structural things, right? So for example Huntington chorea, Brady-Dictelli finger का नंबर चेंज है, Syn-Dictelli fingers joint है आपस में, achondroplasia cartilage का इशू है। सो यहाँ पे ग्रॉस चेंजेस होंगे, जबकि जो ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस है इसमें बेसिकली द एंजाइम फंक्शंस आर डिस्टर्ब। सो इसकी एग्जांपल्स हैं, फॉर एग्जांपल सिस्टिक फाइब्रोसिस, दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस। रिसेसिव का मतलब ये है, पहले भी बताया है कि देयर वाज अ फादर, देयर वाज अ मदर, राइट, एंड लेट्स ड्रॉ देम। सो फादर एंड मदर, मैं इसमें डिफरेंस कैसे करूँ यार, इसमें मैं बाल बना देता हूँ, राइट, सो दैट्स अ मदर, लॉन्ग हेयर्स। अब है ये कि इसमें से जो स्पर्म बना फादर से और मदर से जो ओवम बना, इसमें भी एक क्रोमोसोम है, इसमें भी क्रोमोसोम बहुत सारे हैं वैसे तो, लेकिन हम एक को एज एन एग्जांपल लेते हैं। और यहाँ पे सपोज कोई भी स्पॉट है जो कि एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाता है और वो प्रोटीन नॉर्मल नहीं बन रही, इस बंदे में म्यूटेटेड है, तो ये गड़बड़ बन रही है। इसी तरह फीमेल में भी यहाँ पे जो स्पॉट है सेम प्रोटीन का, ये भी म्यूटेटेड है। अब ये दोनों स्पर्म और ओवम आपस में अगर कंबाइन होंगे तो अब इनमें जो क्रोमोसोम आएगा वो सेम स्पॉट पे दोनों म्यूटेटेड है। दिस इज कॉल्ड रिसेसिव ट्रेट। Now the person will be diseased only if both father and the mother have the abnormal trait. So this is called autosomal recessive. इससे ज़्यादा डिटेल्स में मैं इस वक्त नहीं जा रहा, प्लीज़ मेरे बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स देख लो यार। एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट के लिए, एक्स-लिंक्ड रिसेसिव के लिए। डोमिनेंट का सिंपल मतलब ये है कि अगर एक सेल है उसमें जो क्रोमोसोम का पेयर है उसमें there is one trait, only one chromosome is affected, the other chromosome is normal. इस कंडीशन में भी डिस्पाइट दैट द अदर क्रोमोसोम इज नॉर्मल, देयर विल बी डिजीज प्रेजेंट। अगर सिर्फ एक अलील डिजीज होने की वजह से डिजीज हो जाए, दिस इज कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट। लेकिन कोई ऐसी डिजीज जिसमें दोनों
अलील्स को म्यूटेट होना ही होगा, दैट इज कॉल्ड रिसेसिव। अब अगर वो ऑटोसोम्स पर है तो ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव, अगर वो एक्स लिंक या वाई लिंक्ड है देन दे आर अकॉर्डिंगली, राइट। बट मैं रेकमेंड ये करूंगा आप लोगों को, मैं ना लिंक दे देता हूँ मेरे जेनेटिक्स के लेक्चर्स का इसी वीडियो में, यहाँ कहीं भी ऊपर देखो पॉप हो जाएगा, तो जस्ट गो वॉच दोज वीडियोस। बायोकेमिस्ट्री की डिटेल वीडियोस हैं, उसमें पूरी मैंने पेडिग्री समझाई हुई है, उसको यार एक दफ़ा ज़रूर देख लेना। तो ये ना फिर आप लोग बाद में बोलते हो कि सर आपने भगा दिया, ये चीज़ें स्किप कर दी। भाई स्किप कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ डुप्लीकेट नहीं करना चाह रहा यार। यूट्यूब इतना अच्छा एल्गोरिदम है, हमें इतनी सारी स्पेस देता है यार वीडियोज़ अपलोड करने की, तो मैं क्यों उसकी खामखा की MBs और GBs ज़ाया करूँ ना। तो मैं यहाँ बता देता हूँ कि वहाँ पे मैंने ये वीडियो बना रखी है, प्लीज उसको जाके पढ़ लीजिएगा। ओके, अब बात करते हैं, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर, लेट्स टॉक समथिंग अबाउट डायग्नोसिस एंड हाउ डू वी डू प्रीनेटल डायग्नोसिस। देखें, पेरेंट्स का ये कंसर्न होता है कि हमारे बच्चों में कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी तो नहीं होने वाली, वो कैसे पता चलेगा। ऑब्वियसली इफ अ लेडी इज प्रेग्नेंट तो हमें ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि अंदर जो बेबी डेवलप हो रहा है उसकी डायग्नोसिस करके उसके क्रोमोसोम्स के बारे में पता करें। दिस इज कॉल्ड प्री नेटल डायग्नोसिस, और उसके फिर बहुत सारे तरीके हैं, आइए इसको डिस्कस करते हैं। अब देखें, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ को आइडेंटिफाई करना प्री नेटली ज़रूरी भी है। उसका रीज़न ये है बिकॉज अगर जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ हैं फीटस में तो देयर कैन बी स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज। एक्चुअली जेनेटिक एब्रेशन इज़ द वेरी 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 कॉमन कॉज ऑफ मिसकैरेजेस, यानी प्रेगनेंसी हुई बेबी लॉस हो गया, प्रेगनेंसी हुई बेबी लॉस हो गया। सो इट्स वेरी मच पॉसिबल कि उस बेबी में क्रोमोसोमल नंबर्स ही एबनॉर्मल थे। Then the abnormal number of chromosomes can lead to gross congenital abnormalities also, which can be a cause of morbidity and mortality. For example, पूरा limb missing है, heart rotated है, things like that. Abnormalities in the childhood and adult life can lead to blindness, for example. अगर mitochondrial inheritance अभी मैंने ऊपर बताया था, deafness, malignancy. So basically अगर कोई आपसे पूछता है ना कि भाई प्रीनेटल डायग्नोसिस क्यों ज़रूरी है यार, बच्चा आ जाए दुनिया में उसके बाद देख लेंगे, नहीं भाई, आपको पहले से पता करना बास कंडीशंस में जरूरी होता है। ओके, और क्या इंडिकेशन है इसकी, इफ दी मदर्स, और आप ये काम हर एक में नहीं कर रहे होते, यानी आपके पास ऐसा आपने देखा है अपने खानदान में आसपास इधर उधर कि जो भी प्रेग्नेंट हो रहा है वो जा रहा है क्लिनिक में और कह रहा है कि यार मेरे बच्चे के जरा क्रोमोसोम चेक कर लो, बच्चा अभी हुआ नहीं। हम नॉर्मली नहीं करते ही है, देयर आर सर्टेन इंडिकेशंस, और वो इंडिकेशंस क्या है। इफ देर इज एडवांस मेटर्नल एज, अगर माँ की एज ज्यादा है, पहले ये कहते थे 40+, नाउ आई बिलीव इट्स एटलीस्ट अबव 45+, बिकॉज लाइफ स्टाइल इंप्रूवमेंट्स की वजह से हेल्थ और लिविंग स्टैंडर्ड्स चेंज हो गए हैं। बट एनीवेज 40-45 से ऊपर अगर फीमेल की एज है, सो यू शुड डू प्रीनेटल डायग्नोसिस, बिकॉज सर्टेन क्रोमोसोमल डिजीजेस के रेशो बढ़ जाता है। सो फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर देर इज अ प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ जेनेटिकली एबनॉर्मल चाइल्ड, देन वन शुड वरी अबाउट इट। पहले अगर कोई बच्चा जेनेटिकली एबनॉर्मेलिटी के साथ पैदा हुआ है तो इधर चांसेस के नेक्स्ट टाइम भी होगा। ओके, Now, in addition, routine assessment of normal growth conceptus and to screen for the various congenital malformations, prenatal diagnosis and special tests are indicated in high risk pregnancies. और वो कौन सी high risk pregnancies हैं, यहाँ देखिए 35 कह रहा है, but I've seen in my clinical practice, we now worry more about 40+ females, right? Family history of previous child who has had neural tube defects, previous gestational or chromosomal abnormalities in the same family, one or both parents are known carriers, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई किसी ऑटोसोमल ट्रेट के लिए दोनों पेरेंट्स कैरियर हैं तो चांस है कि ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज जनरेट हो जाए। इफ देयर इज हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट मिसकैरेजेस, इफ देयर इज अ चाइल्ड बॉर्न विद अनबैलेंस, सो दीज आर ऑल द थिंग्स if present in mommy, you should suggest prenatal diagnosis, right? वो कैसे होती है अभी बताता हूँ। अच्छा, प्रीनेटल रिस्क फैक्टर्स और क्या क्या हैं। ओलिगोहाइड्रोएमनियोस, अगर अल्ट्रासाउंड में आपको एमनियोरिक फ्लूइड कम मिल रहा है या ज़्यादा मिल रहा है, फीटल एक्टिविटी कम मिल रही है, ग्रोथ रिटार्डेशन नोटिस कर रहे हैं, या देयर इज प्रेजेंस ऑफ सॉफ्ट टिश्यू मार्कर्स विच यू कैन बी देन थिंकिंग ऑफ कि यार ये तो सजेस्ट कर रहा है कि कोई ना कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है, सो यू शुड देन गो फॉर प्रीनेटल डायग्नोसिस। और वो किस किस तरह से होती है। सो फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ जेनेटिक डायग्नोसिस, और उसके लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं। दिस इज इवन प्री इम्प्लांटेशन। सो प्री इम्प्लांटेशन का मतलब यह है कि अभी फर्टिलाइजेशन हुई भी नहीं है एंड यू आर देन, और इम्प्लांटेशन नहीं हो, फर्टिलाइजेशन हो गई है। सो इफ यू नो द होल प्रोसेस, यू नो दिस इज द fallopian tube, this is the uterus, right? This is the ovary, sperms enter, fertilization happens, and then the blastomere, it goes, and then insert.
और ये इंसर्शन के प्रोसेस इन द यूट्रस वॉल, दिस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन से पहले अगर आपको किसी तरह इफ यू कैन कैच द ब्लास्टोमेयर देन यू कैन बायोप्सी इट, बट दिस इज अ हाईली सोफिस्टिकेटेड एंड डिफिकल्ट टेक्निक, सो पीपल यूजुअली डोंट डू दिस, बट दिस इज प्रीटी easy prenatal diagnosis. Once the pregnancy has settled down, now you can do ultrasound, for example. You can check the levels of amniotic fluid, the fetal growth आप बता सकते हैं, आप crown rump length which is CRL ये बता सकते हैं, बेबी का डायमीटर क्या है स्कल का, फीमर की लेंथ कितनी है. So ultrasound is a very very important indication, right? But then there are certain genetic testings as well. So for example, अभी मैं उस पर आता हूँ, लेकिन अल्ट्रासाउंड में पहले इन्होंने एक और इंपॉर्टेंट बात बताई है. यू ऑल्सो डू डॉपलर अल्ट्रासाउंड, एंड डॉपलर अल्ट्रासाउंड एक्चुअली टेल यू द ब्लड फ्लो वेलोसिटी. सो दिस इज अ वेरी वेरी नाइस एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ डायग्नोस्टिक मेडिसिन. लेकिन डायग्नोस्टिक्स बहुत तेजी से इंप्रूव कर गए. पहले किसी ज़माने में अल्ट्रासाउंड भी नहीं होता था यार. अल्ट्रासाउंड आया, फिर डॉपलर अल्ट्रासाउंड आया, तो बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं इससे. फॉर एग्जाम्पल, बेबी में सही से ब्लड जा रहा है, आ रहा है, अगर नहीं तो कहीं इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन तो नहीं हो रही बेबी में. सो ऑल दीज थिंग्स यू कैन simply tell by doing a very nice ultrasound. Okay, then you can also take blood from mommy and check it for some serum biomarkers. So for example, fetoprotein levels, if they are highly elevated, there can be neural tube defects. If they are down, it can be trisomies, and so you can have an idea. आपको आइडिया जेनेटिक डिसऑर्डर्स का अल्ट्रासाउंड से भी मिल सकता है. आपको आइडिया जेनेटिक डिसऑर्डर का सीरम बायोमार्कर से भी मिल सकता है. लेकिन डेफिनेटिव डायग्नोसिस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डेफिनेटिव डायग्नोसिस के लिए आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा विच इज़ कॉल्ड एमनियोसेंटेसिस. और एमनियोसेंटेसिस, बाकी ये जो सारी चीज़ें ये सजेस्टिव हैं, यानी अल्ट्रासाउंड कैन ओनली सजेस्ट यू कि कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है. आपको बायोमार्कर्स कैन ओनली सजेस्ट यू. सिंपली आप HCG के लेवल्स देख सकते हैं. दे कैन सजेस्ट कि अगर HCG के लेवल्स लो हैं देन दे कैन बी ट्राइसोमीज. यू कैन चेक in the mommy's blood if there is baby's DNA, but that is also very highly sophisticated thing. देखो बात ये है कि this is the mommy, right? She has a bag and इस bag के अंदर amniotic fluid है and then there is the baby, right? अब इसके blood में, now what is the sequence? The DNA comes out in the amniotic fluid, right? And if you have to punch down and biopsy the placenta, that is also down there. अब डीएनए इस एमनियोटिक फ्लूइड में तो मिल जाएगा बेबी का, क्योंकि द सेल्स शेड ऑफ, और प्लेसेंटा में भी आपको विलाय इसमें मिल जाएंगे. यू कैन ऑल्सो डू द विलस सैम्पलिंग. लेकिन माँ के ब्लड में ये डीएनए निकल के ब्लड में आके ऐसे सर्कुलेट कर रहा होगा और आप निकाल लेंगे, इसके चांसेस बहुत कम हैं. सब हो सकता है, पॉसिबल है, बट दैट्स अ वेरी वेरी हाई टेक एंड थिंग. नॉर्मली हम ये नहीं कर रहे होते यार कि सर्कुलेटिंग फीटल सेल देख रहे हो, बट दिस इज समथिंग विच कैन बी डन. एमनियोसेंटेसिस, व्हाट यू डू इज जस्ट पुट अ नीडल इन, इस बैग में से थोड़ा सा एमनियोटिक फ्लूइड निकाल लें, उसकी एनालिसिस करें यार, उसकी बायोकेमिकल एनालिसिस करें, उसमें क्रोमोसोम्स देखें, उसमें डीएनए होगा, उसकी सीक्वेंसिंग करें. ये दिस इज अ वेरी गुड टेक्निक यार, amniocentesis, right? Then there is a technique which is called chordocentesis. What you do is you directly take blood from the umbilical cord. This is chordocentesis, and then you can check for anemia, antibodies, karyotyping, DNA. You can also take out जब needle डाल ही ली है, so you can take out also the fetal tissues. और fetal tissues जो है उनको आप मैंने आपको बताया chronic villus sampling, there is villi, तो यहाँ से fetal tissue आपको डायरेक्टली मिल जाएगा. टिश्यू मिल गया, उसका डीएनए निकालें, उसको स्टडी करें, कैरियोटाइपिंग करें, सीक्वेंसिंग करें, और आपको पता लग जाएगा उस बच्चे में कोई बीमारी है कि नहीं है. सो दीज आर ऑल द टेक्निक्स व्हिच यू कैन डू, राइट? नीडल इंसर्ट करना है, या तो एमनियोटिक फ्लूइड निकाल लें, एमनियोसेंटेसिस, या कॉर्ड ब्लड निकाल लें, कॉर्डोसेंटेसिस, या विलाय में प्लेसेंटा की विलाय से आप डायरेक्ट सैंपल ले लें, पंच बायोप्सी कर लें, एंड दिस इज देन कॉल्ड chorionic villus sampling. These are all highly sophisticated techniques और very useful. ये उनमें इंडिकेटेड है जहां आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी इस कपल के बेबी में हो सकती है. देन गो फॉर दीज, ओके? एंड दिस विल बी वेरी वेरी डेफिनेटिव. देखो अल्ट्रासाउंड से आपको आइडिया मिलेगा कि यार जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, आपको सीरम बायोमार्कर से आइडिया मिलेगा, लेकिन यहाँ तो आप डीएनए स्टडी कर रहे हो, डायरेक्टली एविडेंस है, और आपको बड़ी श्योरिटी के साथ पता चल जाएगा कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है कि नहीं है. ओके,
देन ऑब्वियसली देयर आर वंस द बेबी इज बॉर्न देयर आर पोस्ट नेटल टेक्निक्स। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप ग्रॉसली बेबी को देखेंगे कि कहीं उसकी एनस तो इम्परफोरेट नहीं है। इफ देयर इज एनी फिस्टुला, अब तो आप बेबी आ गया दुनिया में ना, आप डायरेक्टली उसका डीएनए निकाल सकते हो। यू कैन डू इमेजिंग टेक्निक्स लाइक अल्ट्रासाउंड। सो वंस द बेबी इज बॉर्न यू कैन डू ऑल सॉर्ट ऑफ डिफरेंट थिंग्स विद द बेबी टू डायग्नोज वेरियस डिसऑर्डर्स। ओके, नाउ फीटल थेरेपी, अगेन दिस इज द टॉपिक ऑफ मेडिसिन। यार यहाँ पे ये इतना डिटेल में हमें नहीं पढ़ना, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि यार मेडिकल थेरेपी टू मदर for prevention as well as treatment of the certain fetal disorder include folic acid before pregnancy, also during pregnancy, ताकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स ना हो। स्टेरॉइड्स, अब ये समटाइम्स दिए जाते हैं टू मदर्स टू इंक्रीज द फीटल लंग मैचुरेशन, नॉट ऑलवेज गिवन। मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर एनी अदर प्रॉब्लम अगर कोई मदर को है। फीटल ट्रांसफ्यूजन, नहीं यार ये मैं भी नहीं बता रहा। फीटल सर्जरी चाहिए होगी तो करेंगे सर्जरी, क्यों नहीं। स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन एंड जीन थेरेपी, ओ माय गॉड दिस इज लाइक हाई फाई टॉपिक। मैं नहीं कर रहा भाई अभी इसको डिस्कस, ठीक है, टेंशन नहीं देनी मुझे बच्चों को। जनरल एनाटॉमी पढ़ा रहा हूँ, जेनेटिक्स नहीं पढ़ा रहा। Right. Then the last thing is the molecular regulation of development, कि हमारी बॉडी में how actually the developmental process is controlled। देखें BD84 ने ये यहाँ डाल तो दिया है, बट मैंने एम्ब्रियोलॉजी आपको पढ़ाई है डिटेल में ना लैंगमैन से। सो अगेन मैं यहाँ ऊपर इस जगह पे लिंक पॉपअप कर रहा है लैंगमैन का, उसमें मैंने मॉलिक्यूलर रेगुलेशन का पूरा चैप्टर डिटेल में डिस्कस किया है। प्लीज़ गो थ्रू दैट चैप्टर एंड आई थिंक यू विल बी फाइन। यहाँ जितनी डिटेल्स हैं वो एक तो इतनी सफिशिएंट नहीं है, बट अगर आप वो चैप्टर पढ़ लेते हैं लैंगमैन से देन यू विल बी फाइन। आपको पता चल जाएगा कि यार फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर का क्या रोल है, विंड सिग्नलिंग क्या कर रही है रेगुलेशन ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस में, टीजीएफ बीटा का क्या रोल है, हेजहॉग सिग्नलिंग। 4-6 तरह के आपके जेनेटिक फैक्टर्स हैं जो नोन हैं, कंट्रोल करते हैं डेवलपमेंट ऑफ द बेबी और उसका मॉलिक्यूलर कंट्रोल। ये पूरा जो है ना, मैंने अभी इसको पूरा ब्राउज कर लिया है, सारी हॉक्स बॉक्स और ये सारी जो जीन्स हैं यहाँ बहुत ब्रीफली बताई हैं। मैंने बहुत डिटेल में पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है, मैं लिंक दे देता हूँ, प्लीज़ उसको स्टडी कर लीजिएगा। सो गाइज दिस वॉज all about the chapter of genetics in the newest edition of BD84 General Anatomy। आप सबकी ये ख्वाहिश थी, बार बार मुझे मैसेजेस आ रहे थे। So here is the chapter for you. Love you all. Please subscribe the channel, hit the bell icon, like कर दें, शेयर करें वीडियो को, मैसेज करके मुझे बताएं कैसी लगी वीडियो। थैंक यू वेरी मच। आपसे मिलता हूँ बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिएगा।